Assalamu students, I'm Dr. Junaid Jahangir. Welcome to today's class. Sorry for the few minutes delay. I was waiting to say students aa jaएं. Let's start the class. Today our topic is the short cases of precordium and short cases of chest. So let's start with the precordium. First of all, ये वीडियो आपने देखनी है. Assalamualaikum. My name is Dr. Jahangir. I am Senior Registrar in Pediatrics at Albany Medical University. Today I am going to tell you how to do examination of precordium in children. Assalamualaikum. मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है. मैंने आपका मुआयना करना है. इंशाअल्लाह दौरान मुआयना आपको तकलीफ नहीं. क्या मैं आपको मुआयना कर सकता हूँ? Thank you. In examination of precordium, first of all, do the inspection. Inspect the precordium, look for any visible scar marks, deformity, pectus excavatum, carinatum, any bulge in the thorax, any visible pulsations, anything abnormal which you can see. Then before doing palpation, if it's a cold weather, must rub your hands so that your hands may not be so cold. When you do palpation, the palpation starts from apex beat. First of all, the apex beat, feel the apex beat. After feeling it, locate the apex beat with your finger, then count it from mandibular sterni, which is in the second intercostal space. Count it from the second intercostal space, third, fourth, and fifth. Let's suppose it is in the fifth intercostal space, and point it out. Is it in the fifth intercostal space? See where it is. Either is it in the mid-clavicular line or is it just placed? Then see whether it is normal or it is tapping or is it heaving. When the apex beat is tapping, your finger will be slightly tapped. Heaving means that it is lifting up. It's not only just touching, it's lifting up. Then there is ill-sustained heave and well-sustained heave. In ill-sustained heave, the finger is lifted up for a short time. In well-sustained heave, the finger is lifted up for a long time. So after checking the apex beat, look, feel the right ventricular heave with either this method or sometimes it's done with this method. Then palpate the pulmonary area and the aortic area with the fingers and palm of your hand. This is to see whether there is there any fill present in the pulmonary and the aortic area. Then look for the trachea, palpate the trachea. After palpating trachea, look for epigastric pulsations. Feel the epigastric pulsations. So these were the 5 steps in palpation of the precordium. I repeat again. First of all, apex beat, then the right ventricular heave, then palpate the both aortic and the pulmonary areas, then the trachea, and then the epigastric pulsations. So after palpation, go for auscultation. Now, auscultation of the precordium starts from apex beat. In fact, it starts from mitral area, and mitral area is the area where the apex beat is felt. So if the examiner just asks you to auscultate the precordium, he gives you a short command, auscultate the precordium. Then don't go to the auscultation straight away. First of all,
all the steps, introduction, consent, proper exposure, then come and check the apex speed, locate the apex speed, and then that will be the mitral area. So you have to auscultate that area. So mitral area is the area where the apex speed is felt. So this is the mitral area. First step is to place the step at the right point. Second step is to synchronize it with the carotid. Third step is to give the command of respiration to the patient. बेटा सांस अंदर ले बाहर निकाले और रोक ले. Fourth step is to ask the patient to go to the left lateral position. बेटा left lateral पे हो जाए और side पे हो जाए and see whether there is exaggeration of any murmur. And fifth step, सीधे हो जाए बेटा. Fifth step is to check the radiation of the murmur in the exam. So I repeat these 5 steps at the mitral area. First step is to place the step at the exact area. Second step is to synchronize. Third step is to give the command of respiration. Fourth step is to do left lateral. And the final step is to check the radiation in the axilla. Now, the next area is tricuspid area. In tricuspid area, again, the first step is to place the step at the exact area. Second step is to synchronize it in the carotid. Third step is to give the command of respiration. बेटा सांस लंबा ले, अंदर ले और रोक. These are 3 steps at the tricuspid area. Next is the pulmonary and then the aortic area. At the pulmonary area, again, there are 3 steps. First step is to place the step. Second step is to synchronize with the carotid. And third step is to give the command of respiration. बेटा सांस अंदर ले और रोक. The final is the aortic area. In aortic area, the first step is to place the step at the exact point. Second step is to synchronize with the carotid pulsation. Third step is to give the command of respiration. बेटा सांस ले, बाहर निकाले और रोक. Fourth step is to ask the patient to sit up and lean forward. बैठ जाए बेटा, थोड़ा सा झुक जाए, थोड़ा झुक जाए. And fifth step is to check the radiation in the neck. So these are the 5 steps in auscultation of the aortic area. I ask this patient to sit up and lean forward because the murmur of aortic regurgitation becomes exaggerated when the patient leans forward. And I have checked the radiation in the neck because the murmur of aortic stenosis radiates to the neck. Initially, I have asked this patient to come on the left lateral position because the murmur of mitral stenosis gets exaggerated when the patient is turned towards the left lateral position. I have given him commands of respirations because the murmurs of right heart, they increase during inspiration, and the murmurs of left heart, they increase during expiration. So, if you can focus the mitral area and in the aortic area, जो दो बाहर वाले एरियाज हैं उनमें सांस बाहर निकाल के रोकने की कमांड है, और जो दो अंदर वाले एरियाज, एक ट्राइकस्पिड एरिया और दूसरा पल्मोनरी एरिया, ये अंदर वाले एरियाज, इनमें सांस अंदर लेके रोकने की कमांड है. माइट्रल और एओर्टिक बाहर वाले एरियाज, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी अंदर वाले एरियाज. बाहर वाले एरियाज में सांस बाहर लेके रोकने की कमांड देनी है, अंदर वाले एरियाज में सांस अंदर लेके रोकने की कमांड देनी है. Once you are done with the auscultation, and if you have time, then do the relevant examination. Look for the basal cracks. Do the do the hepatojugular reflex. Do the hepatojugular reflex. Look for hepatomegaly. Look for pedal edema. And examine the hands of the patient for signs of infective endocarditis like splinter hemorrhages, Janeway lesions, oscar nodes, petechiae, bruises, and the rest of the things.
Now, when you will be done with your examination, say thank you to the patient, thank you, and cover him again. This has marks in your examination. But later. Now, once you're done with examination, the examiner will ask you about certain questions. First of all, he will ask you, give me your findings. Then you need to have a very good description of what you have done. I have an 8-year-old boy lying comfortably on bed with no obvious distress or dysmorphic features. On inspection, there are no visible scar marks, deformity, pectus excavatum, carinatum, or any other deformity in the chest. On palpation, the apex beam is in the 5th intercostal space in the mid-clavicular line, tapping in character. There was no parasternal heave or thrill present. The trachea was in the center, and there were no epigastric pulsations. Both the first and second heart sounds were audible with a grade 3 pansystolic murmur, maximum heard at the lower left parasternal border, radiating to the whole of the precordium with no exaggeration on respiration and change of posture. The pitch of the murmur was high, and the character of the murmur was harsh or blowing, whatever it is. The child is not in heart failure, and there are no signs of infective endocarditis. So this would be the description of the child. Thank you so much. So, ये वीडियो हम आपको जो आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेज देंगे। जब आप दोबारा देखना चाहें तो उसमें से देख सकते हैं। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर पाकिस्तान अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के नाम से, उस पर भी ये लगी हुई है। आप जब चाहें उसको मैं दोबारा भी देख सकते हैं। थोड़ा सा आखिर में वीडियो स्टॉप हो गई थी, आपको जस्ट वॉइस आ रही थी, उसके लिए माजरत, बाजू का सिग्नल थोड़ा ड्रॉप हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फॉर्मल सेशन नाउ। These were the steps of precordium examination। ये एक दफ़ा पहले अपने दिल में पढ़ें, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको खूबसूरती से समझ आ जाएगी। पहले एक दफ़ा देख लें। Recording in progress. So first step is introduction, consent, greeting. Second step is 30 seconds inspection with proper exposure. मेरे तमाम short cases में second step है वो यही होगा, 30 second inspection with proper exposure. It's not written in the books, but with over the years पढ़ा के मैंने ये सीखा है कि ये 30 सेकंड इंस्पेक्शन विद प्रॉपर एक्सपोजर स्टूडेंट्स को पास कराता है। और यही स्टेप अगर मिस हो तो स्टूडेंट्स फेल होते हैं, क्योंकि इस 30 सेकंड इंस्पेक्शन विद प्रॉपर एक्सपोजर में वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। वो देख लेते हैं कि क्या बच्चा ओवरऑल वेल है, लुकिंग सिक और लुकिंग वेल, इज ही मेंटेनिंग एन आई कांटेक्ट, इज ही ओरिएंटेड, is there any obvious rash, is there any obvious deformity, is there any obvious edema, is there any obvious distension, is the gait well, कोई obvious limp, कोई antalgia, कोई welding, कोई ataxia, ये obvious चीजें जो gross चीजें होती हैं, कोई abnormal movements, ये इस 30 सेकंड के इंस्पेक्शन में नजर आ जाती हैं।
Step number 3 is localize the apex beat. Step number 4 is palpate for left parasternal heave. Step number 5 is palpate for thrill in all areas. Step number 6 is palpate trachea and epigastric pulsations. Step number 7 is auscultate all areas. Step number 8 is look for pulse, pallor, clubbing, jaundice, oral hygiene, signs of infective endocarditis. उसके बाद आपने रेलिवेंट एग्जामिनेशन करना होता है जिसमें बेसल क्रेफ्ट की ऑस्कल्टेशन है, एब्डोमेन की पल्पेशन है, हार्ट साउंड्स देखने हैं, एडिमा देखना है, यानी कि जितना भी रेलिवेंट एग्जामिनेशन है वो करना है आपने। स्टेप नंबर 10 में आस्क द चाइल्ड टू वॉक, लुक फॉर एनी फोकल डेफिसिट। अच्छा, ये वॉक कुछ लोग शुरू में ही करा लेते हैं, 30 सेकंड इंस्पेक्शन में करा लेते हैं ये वॉक, और कुछ लोग जो हैं वो एंड पे कराते हैं। गेट चेक करने के बहुत फायदे हैं। गेट चेक करने से आपको बहुत सारी चीजों का ऑब्वियस पता लग जाता है, यानी कोई ऑब्वियस स्ट्रोक हो, लिम्प हो, एटेक्सिया हो, वेल्डिंग हो, कोई हाई स्टेपिंग गेट हो, कोई फुट ड्रॉप हो, या आपको गेट पे एक नजर देखने से ही पता लग जाती हैं चीजें। आस्क फॉर फंडोस्कोपी। बहुत सारे शॉर्ट केसेस में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने एग्जामिनर से कहना है कि आई वुड लाइक टू डू फंडोस्कोपी ऑफ दिस पेशेंट। हर शॉर्ट केसेस में उसकी अपनी रीजंस हैं, ठीक है, एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो। जनरल फिजिकली कमांड तो ब्लड प्रेशर खुद करना है, कमांड कोई और है तो आप ऑफर भी कर दें। अगर बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, जैसे नेफ्रोटिक में बहुत रेलिवेंट है ब्लड प्रेशर चेक करना, तो कर लें। सीकेडी में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है बीपी चेक करना, सीकेडी को नेफ्रोटिक में कर दें। अगर फर्ज करें सीएनएस है, स्ट्रोक है, कोई इस तरह की चीजें, तो आप ऑफर भी कर दें तो काम चल जाएगा। एंड द लास्ट स्टेप इज कवर एंड थैंक्स। I need one volunteer to repeat all these steps. Who's the volunteer to repeat all these steps? Dr. Hina Sadiq, kindly repeat these steps. बोलने से पहले अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आई हैव किड्स अराउंड, तो इसलिए मैंने रहना नहीं ऑफर किया था, मैं फिर भी कर लेती। जी। ओके, स्टेप 1 में वी विल डू द इंट्रोडक्शन, कंसेंट एंड ग्रीटिंग. In step 2, we will do 30 second inspection with proper exposure. In step 3, we will localize the apex beat. In step 4, we will palpate for left parasternal heave. In step 5, we will palpate for thrill in all areas. In step 6, we will palpate for trachea and epigastric pulsations. In step 7, we will auscultate all areas. Step 8 is general physical examination. We will look for pulse, pallor, clubbing, jaundice, oral hygiene, and signs of infective endocarditis. In step 9, we will do the relevant examination according to our patient, like auscultation of basal craft. We will palpate abdomen, check for hepatosplenomegaly and edema. In step 10, we will ask the child to walk and look for any focal deficit and ask for fundoscopy and blood pressure. In step 11, we will cover and thank. Okay, thank you so much.
उसके बाद जब चूंकि प्रिकॉर्डियम एग्जामिनेशन में आपने मर्मर की डिस्क्रिप्शन देनी है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कि मर्मर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको आपको पता होना चाहिए, आपको जुबान पे होना चाहिए, और फिर उनकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, और उस मर्मर डिस्क्रिप्शन कैसे बोलनी है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने मर्मर की टाइमिंग बतानी होती है, ठीक है। टाइमिंग से मुराद ये सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है, फिर किस ग्रेड का है, फिर साइट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है, फिर कहाँ रेडिएट कर रहा है, कैरेक्टर कैसा है, पिच कैसी है, इफेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन कैसा है, इफेक्ट ऑफ पोस्चर कैसा है, ठीक है। 8 चीजें जो आपकी किताब में लिखी हैं और एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आपको ये 8 नहीं बता सकते तो कम से कम 6 बता दें। कैरेक्टर या पिच बेशक अगर ना भी बताएं तो बाकी 6 आपने बतानी है। जैसे मैं आपको एक दफा सुनाता हूँ डिस्क्रिप्शन। अच्छा, मरमर की डिस्क्रिप्शन देने से पहले आपको दोनों फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड के बारे में बताना है कि वो ऑडिबल हैं या नहीं। जैसे आपने कहना है कि जी on auscultation both the first and second heart sounds are audible with a grade 3 pan-systolic murmur maximum heard at left lower sternal border radiating to the whole of the precordium with no exaggeration on respiration or change of posture। ये एक मैंने एक टेम्पलेट सुनाया है आपको। इस टेम्पलेट को आपने एग्जाम में अपनी केस की को देखते हुए अपने केस की बेस पे इस टेम्पलेट को आपने एडिट करना है, ठीक है। मैं आपको मुख्तलिफ केसेस में जो टेम्पलेट्स हैं वो तैयार करवाऊंगा, उन टेम्पलेट्स को फिर आपने एडिट करना है। तो अब मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन सुनाई उसमें मैंने आपको बता दिया कि ग्रेड ये मर्मर जो है वो पैनसिस्टोलिक है, और मैंने आपको बता दिया है कि जो ग्रेड है मरमर का वो क्या है। ग्रेड मैंने कहा ग्रेड 3 पैनसिस्टोलिक मरमर है। मैक्सिमम हार्ट एट लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर मैंने आपको बता दिया। कहाँ रेडिएट कर, रेडिएटिंग द होल ऑफ द प्रिकॉर्डियम मैंने बता दिया। करेक्टर पिच मैंने नहीं बताया आपके लिए थोड़ा आसान बनाने के लिए, विद नो एग्जैजुरेशन ऑन रेस्पिरेशन और चेंज ऑफ पोस्चर, ठीक है। करेक्टर में आपने अगर बताया कोई तो अच्छी बात है कि ब्लोइंग करेक्टर है या हार्श है, पिच लो है या हाई पिच है, ये बातें बतानी होती हैं अगर कोई बताता है तो। जैसे ही आप ग्रेड ऑफ मर्मर का जिक्र करेंगे कि ग्रेड 3 है या ग्रेड 4 है, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जी हाउ डू यू ग्रेड दैट मर्मर, व्हाट इज द ग्रेडिंग ऑफ मर्मर। तो आपको बताना चाहिए कि ग्रेड 1 इज मर्मर ऑडिबल विद ग्रेट डिफिकल्टी इन अ क्वाइट रूम। कभी भी एग्जाम में ग्रेड 1 मत बोलें, आप पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। सो इट्स अ मर्मर विद ग्रेट डिफिकल्टी इन अ क्वाइट रूम। ग्रेड 2 इज मर्मर इजीली ऑडिबल बट नॉट लाउड। ग्रेड 2 ऑडिबल तो होता है लेकिन लाउड नहीं होता। Grade 3 is loud murmur without thrill and grade 4 is loud murmur with a thrill। grade 3 और grade 4 में just thrill का फर्क है। जो grade 3 में murmur होता है loud लेकिन thrill नहीं होती। grade 4 में murmur होता है loud और thrill होती है। grade 5 में very loud murmur audible even outside the precordium। grade 5 में murmur इतना loud होता है कि it's audible even outside the precordium। और grade 6 में murmur audible without stethoscope, ठीक है। तो ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में या ग्रेड 3 हो या ग्रेड 4 मर्मर हो। थ्रिल किसे कहते हैं? palpable heart sound is called a thrill। palpable heart sound is called thrill। उसके बाद रेडिएशन ऑफ मर्मर है। जो माइट्रल रीगजिटेशन है ये एक्सला में रेडिएट करता है। जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है ये लेफ्ट शोल्डर में रेडिएट करता है। एओर्टिक स्टेनोसिस नेक में रेडिएट करता है, और बैक पे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा का जो मर्मर है ये रेडिएट करता है। आई रिपीट, जो एमआर का मर्मर होता है ये एक्सला में रेडिएट करता है। एमआर का मर्मर। पल्मोनरी स्टेनोसिस का मर्मर लेफ्ट शोल्डर में रेडिएट करता है। पल्मोनरी स्टेनोसिस का मर्मर। एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर नेक में रेडिएट करता है। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा का मर्मर बैक पे रेडिएट करता है। पैनसिस्टोलिक मर्मर के कॉजेज में माइट्रल रिगजिटेशन है, ट्राइकस्पिड रिगजिटेशन है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। एम आर टी आर वी एस टी शॉर्ट फॉर्म में पैनसिस्टोलिक मर्मर के क्या कॉजेज है?
MR है, TR है और VSD है। और इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर के कॉजेज में एओर्टिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस है। डायस्टोलिक मर्मर के कॉजेज में अगर तो मिड डायस्टोलिक है तो माइट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकुस्पिड स्टेनोसिस है, और अगर अर्ली डायस्टोलिक है तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन है। ज्यादा चांस है कि आपसे डायस्टोलिक मर्मर्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के एग्जाम में पूछा जाता है। आज आपसे ज्यादा चांस है कि मर्मर पैन सिस्टोलिक के सवाल होंगे और रिजेक्शन सिस्टोलिक के सवाल होंगे, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। पैन सिस्टोलिक के जो TD MTV यूज करने मोनिक है, MR TR और VSD। रिजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है स्टेनोसिस में, चाहे वो एओर्टिक स्टेनोसिस या पल्मोनरी स्टेनोसिस है। फिर MR TR VSD तीनों में पैन सिस्टोलिक होता है, लेकिन इन तीनों के अपने भी कुछ डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं कि MR और TR को आपस में कैसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, VSD को कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा कि MR TR VSD को आपस में कैसे हम डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसमें एक बात तो ये याद रख लेना कि जो TR है उसमें एपेक्स स्पीड नॉर्मल रहती है, जबकि MR में और VSD में जो एपेक्स स्पीड है वो मूवमेंट शिफ्ट होती है, जबकि TR में वो नॉर्मल रहती है। और नेक वेन्स जो हैं वो TR में प्रोमिनेंट होती हैं, नेक वेन्स TR में प्रोमिनेंट होती हैं। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो MR में डिमिनिश्ड होता है, जबकि TR में और VSD में नॉर्मल होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड MR में डिमिनिश्ड होता है, जबकि TR में और VSD में फर्स्ट हार्ट साउंड नॉर्मल होता है। ये दो तीन मेन बातें याद कर लें। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है, साइड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी में भी फर्क है। MR का मर्मर जो है वो मार्जिनल एरिया में मैक्सिमम हर्ड होगा, TR का मर्मर ट्राइकस्पिड एरिया में मैक्सिमम हर्ड होगा, और VSD का मर्मर जो है, जो लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर, थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर पे मैक्सिमम हर्ड होगा। रेडिएशन में भी फर्क है। MR का मर्मर एक्सिला में रेडिएट करता है, TR का लोकलाइज्ड होता है, जबकि VSD का अक्रॉस द स्टर्नम रेडिएट करता है। उसके बाद एपेक्स बीट के बहुत ज्यादा जिक्र होता है। जब भी प्रिकॉर्डियम का शॉर्ट केस होता है तो एग्जामिनर वुड लव टू लिसन अबाउट द एपेक्स बीट। अपने खुद से ही बेहतर है कि आपसे खुद से ही सुनाएं कि जी द एपेक्स बीट वाज इन द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस विद नॉर्मल इन कैरेक्टर, या अगर हीविंग है या टैपिंग है तो आप उसको बताएं कि टैपिंग इन कैरेक्टर है, हीविंग इन कैरेक्टर, खुद से ही बताएं। नहीं खुद से बताएंगे तो एग्जामिनर पूछेगा कि अच्छा जी आपने एपेक्स बीट का जिक्र नहीं किया, हाउ वाज द एपेक्स बीट, डिड यू चेक फॉर द एपेक्स बीट, हाउ वाज द एपेक्स बीट, कैसे चेक करते हैं, मुझे चेक करने का तरीका बताएं। फिर आप वो आपसे पूछेगा कि अच्छा बताएं एपेक्स बीट का कितने कैरेक्टर होते हैं, आप कहेंगे जी वो नॉर्मल भी हो सकती है, टैपिंग भी हो सकती है, हीविंग भी हो सकती है। फिर पूछेगा अच्छा टैपिंग क्या होती है, हीविंग क्या होती है, टैपिंग के कॉजेज क्या है, हीविंग के कॉजेज क्या है। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लेट मी टेल यू, a normal apex beat is neither forceful nor does it lifts the palpating finger, ना वो forceful होती है ना ही वो palpating finger को lift करती है। तो इसको बोलते हैं इस बोलते हैं नॉर्मल, ना वो टैपिंग होती है ना हीविंग होती है। अगर वो टैप करे, टैप का मतलब ये है कि फोर्स तो नहीं होती, बस जस्ट पल्पेटिंग फिंगर इज नॉट डिस्प्लेस्ड, यानी आपकी जो फिंगर होती है जिसे आप पल्पेट कर रहे होते हैं उसको कुछ चीज टैप कर रही होती है, समथिंग इज जस्ट टचिंग इट अगेन एंड अगेन, बट इट्स नॉट डिस्प्लेसिंग। और जब वही पल्पेटिंग फिंगर लिफ्ट हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, यानी कि वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाए, तो दैट्स हीविंग एपेक्स बीट। सो दिस इज टैपिंग एपेक्स बीट, दिस इज हीविंग। The feeling resembles hard knock on the other side of a closed door. टैपिंग जो ऐसे कोई डोर पे दस्तक देता है, इट इज ड्यू टू palpate loud first heart sound in mild stenosis। जो टैपिंग एपेक्स बीट होती है वो इसलिए होती है कि जो जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो लाउड हो जाता है और palpable हो जाता है इन द माइल्ड स्टेनोसिस। फिर हीव जो है, अगर वो हीविंग है यानी कि वो लिफ्ट हो रही है, तो हीविंग के फिर अपने कॉजेज हैं। उसमें एक ill sustained heave है, एक well sustained heave है। Ill sustained heave, finger is lifted for a short period. It occurs when the left ventricle has to eject excessive blood volume, for example mitral and aortic regurgitation। ठीक है।
जब एक शॉर्ट टाइम के लिए फिंगर लिफ्ट हो तो दैट्स इल सस्टेन हीव, और इल सस्टेन हीव होती है व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू इजेक्ट एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल माइटल एओर्टिक रिगर्जिटेशन। वेल सस्टेन हीव जब थोड़ी सी ज्यादा देर के लिए आपकी फिंगर लिफ्ट हो रही हो, finger is lifted for a longer period, it occurs when the left ventricle has to contract against high resistance। जब आगे रेजिस्टेंस ज्यादा हो, पीछे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े, आगे रेजिस्टेंस ज्यादा है, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस है, जैसे हाइपरटेंशन है, आगे रेजिस्टेंस ज्यादा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करना पड़ रहा है, तो उससे आपकी ज्यादा देर के लिए लिफ्ट होगी फिंगर, वेल सस्टेन हीव आएगी एओर्टिक स्टेनोसिस में और हाइपरटेंशन में। ठीक है, यहाँ उसको ज्यादा ब्लड ज्यादा इंजेक्ट करना पड़ा था, इसलिए थोड़ी सी इल सस्टेन हीव थी, जैसे माइटल और रीगर्जिटेशंस थी। नाउ समटाइम्स एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि जी बहुत द फर्स्ट बहुत द हार्ट साउंड्स आर सॉफ्ट, तो किस कंडीशन में हो सकते हैं कि बहुत ही दोनों हार्ट साउंड सॉफ्ट हों, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो या एम्पाइमा हो या बहुत ज्यादा थिक चेस्ट वॉल हो, तो बहुत दोनों हार्ट साउंड सॉफ्ट होंगे। लाउड एस1 के कॉजेस पूछ लेते हैं, माइटल स्टेनोसिस, टेकिकार्डिया। माइटल स्टेनोसिस में लाउड एस1 होता है, टेकिकार्डिया में लाउड एस1 होता है, सॉफ्ट एस1 होता है एमआर में, हार्ट फेलियर में, रोमैटिक कार्डाइटिस में सॉफ्ट एस1। समटाइम्स अब रिदम जब इरेगुलर होता है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है या हार्ट ब्लॉक है, तो फिर वेरिएबल एस1 होता है। लाउड पी2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई दफा पूछा गया कि जी पी2 लाउड होने की क्या कॉज होता है। सो पी2 लाउड होने का मतलब है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, प्लीज याद रख लें, पी2 लाउड होने का मतलब है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सॉफ्ट पी2 होता है पल्मोनरी वैल्वुलर स्टेनोसिस में, पल्मोनरी वैल्वुलर स्टेनोसिस सॉफ्ट पी2 होता है। लाउड ए2 होता है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में, P2 लाउड होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, और A2 लाउड होता है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में। आई रिपीट, P2 लाउड होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में और A2 लाउड होता है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में। सॉफ्ट A2 होता है एओर्टिक स्टेनोसिस में, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, दोनों जो एओर्टिक जो जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो स्टेनोसिस है या वो रिगर्ज है, उसमें सॉफ्ट A2 हो जाता है। लाउड A2 सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। उसके बाद आपको पता है कि जो सेकंड हार्ट साउंड है उसमें एक स्प्लिटिंग होती है, ये आपने फाइनल ईयर इसके लेवल से पढ़ा हुआ है। एक यूजुअल स्प्लिटिंग होती है, एक फिक्स स्प्लिटिंग होती है और एक रिवर्स स्प्लिटिंग होती है। आपको तीनों पता होना चाहिए कि यूजुअल स्प्लिटिंग कब होती है, फिक्स स्प्लिटिंग कब होती है और रिवर्स स्प्लिटिंग कब होती है। Interval between A2 and P2 is more during inspiration and less during expiration. This is the usual splitting. Usual splitting क्यों होती है? Because the interval between A2 and P2 is more during inspiration and less during expiration. ये यूजुअल स्प्लिटिंग है। यूजुअल स्प्लिटिंग का कॉज क्या है? चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स, dilated right ventricle, right bundle branch block, pulmonary stenosis if P2 is audible, pulmonary hypertension। ठीक है, आई रिपीट, यूजुअल स्प्लिटिंग के causes: physiological splitting, dilated right ventricle, right bundle branch block, pulmonary stenosis, pulmonary hypertension। फिक्स स्प्लिटिंग, फिक्स स्प्लिटिंग का मतलब क्या? स्प्लिट इज वाइड इंटरवल बिटवीन A2 एंड P2 इज द सेम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। हमने आपको बताया कि यूजुअल स्प्लिटिंग में जो इंटरवल होता है बिटवीन A2 एंड P2 वो ज्यादा होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, फिक्स स्प्लिटिंग में इंटरवल बिटवीन A2 एंड P2 इज सेम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। चाहे इंस्पिरेशन है चाहे एक्सपिरेशन है, जो इंटरवल है बस सेम है, दैट्स फिक्स स्प्लिटिंग। एंड फिक्स स्प्लिटिंग इज सीन इन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। प्लीज डू रिमेंबर, फिक्स स्प्लिटिंग इज सीन इन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। रिवर्स स्प्लिटिंग, यूजुअल स्प्लिटिंग क्या थी कि इंटरवल बिटवीन A2 एंड P2 इज मोर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। यही अगर रिवर्स हो जाए, अगर कहा जाए कि इंटरवल बिटवीन A2 एंड P2 इज लेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, मोर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। यूजुअल का रिवर्स, वहां पे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इट वाज मोर, यहाँ
During inspiration, it was less. Wahan, during expiration, it was less. Here, during expiration, it's more. So this is reverse splitting. And reverse splitting is seen in left middle branch block, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, and severe aortic stenosis. I repeat, reverse splitting is seen in left bundle branch block, hypertrophic cardiomyopathy, and severe aortic stenosis. ये आपका वायवा तैयार हो गया. Now, few words about third heart sound. This is a low-pitched sound and occurs in early diastole at the time of rapid ventricular filling. Early diastole में आता है, low pitch होता है, filling में आता है. कॉजेज में चिल्ड्रन हेल्दी यंग एडल्ट्स भी हैं, प्रेगनेंसी भी है, हार्ट फेलियर भी है और माइल्ड रिगर्जिटेशन भी है. मतलब बच्चों में वैसे भी आ सकता है. फोर्थ हार्ट साउंड भी लो पिच्ड होता है एंड इट अकर्स इन लेट डायस्टली. थर्ड हार्ट साउंड अर्ली डायस्टली में होता है, फोर्थ हार्ट साउंड लेट डायस्टली में होता है और ये ड्यू टू एट्रियल कंट्रैक्शन होता है इफ द वेंट्रिकल्स आर स्टिफ और नॉन कंप्लायंट ड्यू टू डिजीज. वैसे नहीं होता, जब वेंट्रिकल स्टिफ हों या वेंट्रिकल्स नॉन कंप्लायंट हों तब होता है. सो इट्स सीन इन हाइपरटेंशन एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज. सो फोर्थ हार्ट साउंड आपको नॉर्मली नहीं मिलता. अगर हाइपरटेंशन हो या इस्केमिक हार्ट डिजीज हो, वेंट्रिकल स्टिफ हो जाए, फिर आपको मिलेगा ये. एग्जामिनर्स अक्सर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीनस पल्स एंड आर्टीरियल पल्स. वीनस पल्स पैल्पेबल नहीं होती, आर्टीरियल पल्स पैल्पेबल होती है. वीनस पल्स इज actually compression at the root of neck and veins becomes prominent. ठीक है, remain visible. arterial pulse visible रहती है. venous pulse उस वक्त visible होती है जब आप compress करते हैं रूट ऑफ नेक पे, फिर veins big prominent होती हैं. Venous pulse has a definitive upper level. It varies with the respiration. Arterial pulse is not affected by respiration. I repeat, जो venous pulse होती है उसका respiration से कोई ताल्लुक नहीं होता. It doesn't vary with the respiration. जबकि arterial pulse जो है, it varies with respiration. जबकि arterial pulse does not vary with respiration. Venous pulse में हेपेटोजुगुलर रिफ्लक्स का रोल है. यानी हेपेटोजुगुलर रिफ्लक्स करेंगे वो प्रोमिनेंट होगी, पॉजिटिव होता है. हेपेटोजुगुलर रिफ्लक्स पॉजिटिव होता है इन वीनस पल्स, जबकि आर्टिकल पल्स का हेपेटोजुगुलर रिफ्लक्स से कोई ताल्लुक नहीं है. 3 upstroke and 2 downstrokes होते हैं in the venous pulse and 1 upstroke and 1 downstroke होता है in arterial pulse. Now I will give you a scenario. आप उस सिनेरियो पढ़ेंगे और उस सिनेरियो के मुताबिक आप अपनी डीटीज बनाएंगे. अगर कोई गलत बनाता है तो कोई बात नहीं, ये एक प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ कोई किसी की इंसल्ट नहीं की जाती. मकसद आपको तैयारी करवाना है. और अगर किसी को आंसर नहीं आता तो वह हेल्प बोलेगा तो साथ वाले उसकी हेल्प कर देंगे, उसकी जगह आंसर दे देंगे. सो आई नीड अ वॉलंटियर. कोई वॉलंटियर ऐसा है जो ये सिनेरियो पढ़ेगा? कम ऑन. जो मेरी क्लास में वॉलंटियर करता है वो कभी फेल नहीं होता. कोई भी नहीं वॉलंटियर कर रहा. जब आप लोग वॉलंटियर नहीं करेंगे फिर मैं किसी से कहूंगा. तो फिर मेरी इज्जत रख लेना, अपना माइक अनम्यूट करके रीड आउट कर देना, कोई मुश्किल नहीं है. जी, डॉक्टर मरियम काइंडली रीड दिस सिनेरियो. Scenario 1. A 5-year-old boy presents to you with cyanosis, clubbing, and ejection systolic murmur at upper left second intercostal space. The child is not in heart failure and there are no signs of infective endocarditis. शाबाश, वेरी गुड. क्या माइंड में आ रहा है? The upper left second intercostal space है और साइनोसिस के साथ तो स्वेयर पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकता है. शाबाश. कोई और थोड़ी कॉमन चीज आ रही है माइंड में? इससे ज्यादा कॉमन चीज जो एग्जाम में भी रखी जाती है? There's a top tetralogy of Fallot. शाबाश, वेरी गुड. So the answer is tetralogy of Fallot. Well done, Dr. Mariam. अच्छा,
So your first differential is tetralogy of Fallot. Give me two other differentials. Sir, TGA with AST or severe pulmonary stenosis? So let's read out the differential diagnosis of TOF. TOF के differentials में आप TGA with VSD रख सकते हैं, with pulmonary stenosis, TGA with pulmonary stenosis भी रख सकते हैं. Number two differential diagnosis of TOF is univentricular heart with decreased pulmonary flow. Number three differential can be DORV with pulmonary stenosis, and number four is tricuspid atresia with pulmonary stenosis. ठीक है, क्योंकि टॉफ में जो मर्मर होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस का होता है. सो पल्मोनरी स्टेनोसिस यही वजह है कि आप देख रहे हैं टीजीए विद वीएसटी विद पल्मोनरी स्टेनोसिस, यूआरबी विद पल्मोनरी स्टेनोसिस, टाइक्सपिड एट्रीजिया विद पल्मोनरी स्टेनोसिस. तो इसमें आपने अब अकेला पल्मोनरी स्टेनोसिस, खासतौर पे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सीवियर पल्मोनरी स्टेनोसिस, तो सीवियर पल्मोनरी स्टेनोसिस बड़े सिक बच्चे होते हैं. अकेले अगर फर्ज करें किसी को पल्मोनरी स्टेनोसिस है, सीवियर है, मिक्सिंग नहीं हो रही, तो वो बच्चे बड़े सिक होते हैं, वो आपके एग्जाम में नहीं रखे जाएंगे. सो टीबी पल्मोनरी स्टेनोसिस अमूमन विद सम अदर कंडीशन आएगा जिसमें कि साथ थोड़ी मिक्सिंग हो रही होगी, बच्चा इस काबिल होगा कि वो एग्जाम में आया हो. तो उसमें फिर आपने बोलना है या टीजी विद पल्मोनरी स्टेनोसिस बोलना है, या ड्यूआर विद पल्मोनरी स्टेनोसिस, या ट्राइकोफेट्रीजिया विद पल्मोनरी स्टेनोसिस बोलना है. यूनिवेंट्रिकुलर हार्ट भी इसका एक डीडी बन सकता है टॉफ का. सो वेल डन डॉक्टर मरियम, आपने अच्छी अटेम्प्ट की. लेकिन ये देखें कि अगर पहले से अगर आपको ड्यूटीज याद हों तो फिर एग्जाम में आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा और आप परेशान नहीं होंगे. नाउ जो कॉमन इसमें जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं वो एग्जामिनर पूछ लेता है अक्सर कि जी व्हाट विल यू सी इन फंडोस्कोपी इन टॉफ. जो मैंने आपको शुरू में स्कीम जब आपको याद करवाई थी शॉर्ट केस की, तो मैंने आपसे कहा था कि आप ऑफर कर दिया करें फंडोस्कोपी. तो अगर वो इस केस में पूछे कि जी क्यों फंडोस्कोपी आपने ऑफर की, तो आप कह सकते हैं कि सर आई वुड लाइक टू सी द रॉथ स्पॉट्स व्हिच कैन बी सीन इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, प्लस वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉफ कैन बी सेरेब्रल एब्सेस. तो मैं उसमें आईसीपी देख सकता हूँ, स्ट्रोक हो सकता है, उसमें आईसीपी देख सकता हूँ. प्लस पोलीसाइथीमिया इन बच्चों में बड़ा कॉमन है. आई कैन सी रेटिनल कंजेशन इन पोलीसाइथीमिया. ठीक है, सो ये रीजंस हैं फंडोस्कोपी कराने की. शॉर्ट केस में आपने एक बात याद रखनी है कि जो बात भी आप मुंह से निकालें आप उसको डिफेंड कर सकें. कोई ऐसी बात मुंह से ना निकालें जिसे आप डिफेंड ना कर सके. जो स्टेप आप करेंगे, ठीक है, उसकी रीजनिंग एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी कि जी अगर आपने ये स्टेप किया है तो क्यों किया, स्पाइन देखी है तो क्यों देखी है, आप इंटरेस्टेड हैं अगर हेपेटोजुगुलर रिफ्लक्स में तो क्या वो रेलिवेंट है, क्यों किया आपने. यानी कि एग्जामिनर ये देखता है कि ये चीज जो कर रहा है इसके बैक ऑफ द माइंड में उसकी रीजनिंग है, उसकी जस्टिफिकेशन है, या वैसे ही रटा रटाया कर रहा है. तो एग्जामिनर कैन आस्क यू डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइनोटिक हार्ट डिजीज एंड आइजनमेंगर. तो आपने कहना है आइजनमेंगर शॉर्ट सिस्टोलिक मर्मर होता है लोकेटेड एट अपर सेकंड स्टर्नल बॉर्डर. P2 is loud, usually accompanied PR and TR due to severe hypertension, usually have chest deformity. ठीक है, साइनोटिक हार्ट डिजीज तो आपको पता है कि क्या होता है, वो तो आप बता ही देंगे कि जी साइनोटिक हार्ट डिजीज यही डिजीज हैं जो कि साइनोटिक हैं, यही हैं जो ये साइनोटिक हैं, साइनोटिक के ये नाम है, साइनोटिक के ये फीचर हैं. थोड़ा सा आपको आइजनमेंगर के बारे में बताना चाहिए. आइजनमेंगर बड़े बच्चों में आता है. आइजनमेंगर में जो क्या होता है, जो इनिशियली चीज ए साइनोटिक होती है वो बाद में साइनोटिक हो जाती है, और जो लेफ्ट टू राइट शंट होता है वो बाद में राइट टू लेफ्ट हो जाता है, और फिर साथ पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है. यूजुअली चूंकि लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन है तो चेस्ट डिफॉर्मिटी हो जाती है, P2 लाउड हो जाता है. ये बातें आपको पता होनी चाहिए. टॉफ का पेशेंट है, फ्लेबोटमी के बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है. आप कहें सर साइनोटिक हार्ट डिजीज में जब हेमाटोक्रिट मोर देन 70 होता है, ब्लड इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद आइदर नॉर्मल सलाइन और विद एफएफपीस. तो इसको फ्लेबोटमी बोलते हैं, जिसमें हम हेमाटोक्रिट रेज्ड हेमाटोक्रिट को कम करते हैं. कितना निकाला जाता है पूछ ले तो कहें जी 5 to 10 ml पर केजी ब्लड निकाला जाता है फ्रॉम वेन. वेन से निकाला जाता है 5 to 10 ml पर केजी निकाला जाता है. What is prerequisites for phlebotomy? Child should be well hydrated, otherwise he will going to spell. So phlebotomy करने से पहले उसको थोड़ा फ्लूइड दे चुके मैं हूँ, हाइड्रेशन उसकी अच्छी हो, अदरवाइज वो स्पेल में जाएगा.
फिर एक बहुत सवाल जो हर दफा तकरीबन एग्जाम में पूछा जाता है कि टॉफ का अगर बच्चा और साथ में डिस्मॉर्फिक फीचर्स हैं तो कौन से दो सिंड्रोम सोचेंगे? पहला डायजॉर्ज सिंड्रोम सोचेंगे, डायजॉर्ज में भी टॉफ होता है, और दूसरा डाउन सोचेंगे, इन द डाउन्स में भी टॉफ होता है, डिस्मॉर्फिज्म होता है, डायजॉर्ज में भी टॉफ होता है, डिस्मॉर्फिज्म होता है. So two syndromes which are associated with TOF and dysmorphism is digeorge and Down. फिर पूछा जाएगा which cyanotic heart disease has increased pulse pressure. So truncus arteriosus has increased pulse pressure. In pink TOF which murmur is present? Pink TOF का सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है. अब यूजुअली तो जो टॉफ होता है ना, आपको पता है ना, वो यूजुअली टॉफ साइनोटिक होता है, वो साइनोज होते हैं बच्चे टॉफ के. लेकिन पिंक टॉफ में बच्चा आपको साइनोज नहीं मिलेगा, उसमें मर्मर पल्मिस्टिनोसिस का नहीं होगा, या राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, उसमें वीएसडी का मर्मर मिलेगा आपको पिंक टॉफ में. हाउ डू यू डिफाइन एपेक्स स्पीड? एरिया ऑफ मैक्सिमम डेफिनेटिव पल्सेशन ऑफ हार्ट ऑन प्रिकॉर्डियम, ठीक है. What is apex beat? Area of maximum definite pulsation of heart on precordium. जब आप प्रिकॉर्डियम के ऊपर हार्ट की पल्सेशन को फील करते हैं, तो जहां पे पल्स सबसे डेफिनेट, सबसे क्लियर होती है, वो एपेक्स बीट कहलाते हैं. और समटाइम्स माइट्रल एरिया की डेफिनेशन भी पूछते हैं आपसे. माइट्रल एरिया इज द एरिया वेयर द एपेक्स बीट इज फेल्ट. ये भी याद रखना है आपने, ठीक है. माइट्रल एरिया इज द एरिया वेयर द एपेक्स बीट इज फेल्ट. Rich, what does left parasternal heave means? लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव का मतलब है कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है और राइट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड है, ठीक है. लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव के दो मतलब है, एक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, दूसरा राइट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड है. ये दो मतलब हो सकते हैं. What are the signs of right ventricular hypertension या राइट वेंट्रिकुलर हीव, ठीक है. राइट वेंट्रिकुलर हाइपरटेंशन है ये बेसिकली. पैरास्टर्नल हीव और एपिगैस्ट्रिक थिल. जब राइट वेंट्रिकल इनलार्ज होगा तो पैरास्टर्नल हीव मिलेगी. राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट का मतलब क्या है कि पैरास्टर्नल हीव है, और इसी तरह एपिगैस्ट्रिक पल्सेशंस भी तब मिलते हैं जब राइट वेंट्रिकुलर इनलार्ज होता है. तो ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का साइंस है. राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का साइंस है पैरास्टर्नल हीव और एपिगैस्ट्रिक थ्रिल. व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ एपेक्स बीट इन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी? तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि आगे माइट्रल स्टेनोसिस है ना, मतलब अगर फर्ज करें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई हुई है और अगर रास्ता तंग है, माइट्रल स्टेनोसिस है, तो फिर जो एपेक्स बीट है वो टैपिंग हो जाएगी, टैपिंग इन कैरेक्टर होगा. सो एपेक्स बीट इन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इज ऑफ कोर्स टैपिंग. यू कैन पेशेंट एग्जामिनर कैन आस्क यू कि अगर एक बच्चा सैनोज है और पैन सिस्टोलिक मर्मर है, सो तो आपकी जीडी क्या होगी? तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कि पैन सिस्टोलिक मर्मर की क्या जीडी होती है, एमआरटी और वीएसटी. अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है कि वो कहता है सैनोज्ड है. अमूमन पैन सिस्टोलिक मर्मर में तो ये साइनोटिक हार्ट डिजीज है, साइनोज नहीं होते वो बच्चे. लेकिन अगर वो कहता है कि जी साइनोज्ड है, पैन सिस्टोलिक मर्मर है लेकिन साइनोज्ड है, तो अब आपने डीडी क्या बनानी, थोड़ी सी डिफरेंट बनानी. आपने टीजी विद वीएसडी बोल देना है, या टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न बोल देना है, या ट्रंकस आर्टरियोसिस बोल देना है. यहाँ पे अब आप सिंपल एमआरटीआर वीएसडी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पैन सिस्टोलिक मर्मर तो है लेकिन साथ में बच्चा साइनोज्ड है. अगर वो कहे जी बच्चा एसाइनोटिक बच्चा है, पैन सिस्टोलिक मर्मर है, क्या डीडीज हैं, फिर एमआरटीआर वीएसडी बोलना है. What are the triggering factors causing worsening of cyanotic spells? ठीक है. अब बताएं कि साइनोटिक स्पेल्स, जैसे इनको टच स्पेल्स भी बोलते हैं, अगर डिहाइड्रेशन हो या इन्फेक्शन हो या हाइपोग्लाइसीमिया हो तो वर्स हो जाएंगे. डिहाइड्रेशन में, इन्फेक्शन में और हाइपोग्लाइसीमिया में. हाउ अ टाइट पल्मोनरी स्टेनोसिस इज जज्ड? जो
pulmonary stenosis अगर बहुत ज्यादा टाइट हो तो मर्मर लाउड होगा बाय ग्रेड ऑफ मर्मर, और दूसरा अगर pulmonary stenosis बहुत टाइट है तो फिर साइनोसिस भी ज्यादा होगी. So by the grade of murmur and by worsening of cyanosis, I will judge the tightening of pulmonary stenosis. उसके बाद मर्मर रेडिएशन में पहले पढ़ा चुका हूँ. इसने यहाँ पूछा कि जी नेक में कौन सा मर्मर रेडिएट करता है. एओर्टिक स्टेनोसिस का जो मर्मर होता है वो नेक में रेडिएट करता है. पल्मोनरी स्टेनोसिस का ज्यादातर शोल्डर की तरफ करता है, समटाइम नेक में भी कर सकता है. फर्स्ट आंसर इज एओर्टिक स्टेनोसिस. Okay, scenario number 2. शाबाश. Do we have volunteer? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. Very good, डॉक्टर साहिबा. आपका नाम क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर भावना. डॉक्टर भावना. डॉक्टर भावना, प्लीज रीड आउट द सिनेरियो. Okay, 1-year-old boy present to you with the recurrent chest infection. His apex beat is in fourth intercostal space. There is no sinuses or clubbing. There is a continuous machinery murmur at the upper left sternal border space. The child is not in heart failure and there are no signs of the infective endocarditis. There is a continuous machinery murmur. It is the murmur of the PDA, pattern ductus arteriosus. Very good, well done, zabardast. So your first differential is PDA. What is your second and third differential? No, बच्चा ना करो. My second, it could be PS, but there is no machinery murmur. Sorry, I don't have any कोई idea बात about. नहीं. हेल्प बोले, हेल्प बोलते. Help. Anybody help, Well. please? मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ. अच्छा, Okay, thank you. तो अब इस तरह है कि जब आपका पीडीए है तो आप पीडीए में 3-4 डिफरेंशियल हैं जो रख सकते हैं. वीनस हम रख सकते हैं. वीनस हम डिसअपीयर के बारे में याद रखना कि डिसअपीयर्स विद एलिवेटिंग लेग्स डाउन और फेस. ये स्लिप है कि समटाइम वाइवे में पूछ लेते हैं. सो वीनस हम कैन बी डिफरेंशियल. एओर्टिकोपल्मोनरी विंडो डिफेक्ट कैन बी अ डिफरेंशियल. इसकी खास बात ये है कि ये सिस्टोलिक इसमें मर्मर होगा, स्टर्नल एरिया में होगा. सब एओर्टिक वीएसडी कैन बी डिफरेंशियल. इसकी खास बात ये कि इसमें आपको क्लैप्सिंग पल्स मिलेगी. सो हर एक डिफरेंशियल में एक खास फीचर आपको मिलेगा, वो आपको याद होना चाहिए. कोरोनरी आर्टरी फिस्टुला भी रख सकते हैं, पेरिफेरल आर्टरियोवेनस फिस्टुला, यानी फिस्टुलास भी रख सकते हैं, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी फिस्टुला है या वो पेरिफेरल आर्टरियोवेनस फिस्टुला है. किताब में रप्चर्ड एओर्टिक साइनस ऑफ वेल्सेल्वा भी लिखा हुआ है. पीडीए की डिफरेंशियल में रप्चर्ड एओर्टिक साइनस ऑफ वेल्सेल्वा लिखा है, लेकिन आप एग्जाम में इसलिए ना बोलना कि ये एक बड़ी इमरजेंसी कंडीशन और बच्चा बड़ा सिक होता है, वो आपके इम्तिहान में नहीं पहुंचा हुआ होगा. सो कोशिश करें कि आप venous arm, aortic pulmonary window defect, subaortic VSD, coronary artery fistula और peripheral AV fistula में से ही कोई 3 differentials अपने बना लें PDA के अंदर. Well done, zabardast. Now I need one more volunteer. Come on. अगर आपको कोई चीज ना आई तो आपने हेल्प बोल देना है, कोई मसले वाली बात नहीं है. वॉलंटियर तो करें प्लीज. Can I read again? चलें, आप और कोई नहीं है तो आप ही पढ़ लें. 4-year-old boy present to you with recurrent chest infection. There is no cyanosis or clubbing. The apex beat is in the fifth intercostal space. There is a grade 3 pansystolic murmur. Maximum heard at the left lower sternal border, radiating to the whole of the precordium. Liver is about 3 centimeters below right costal margin, and there is bilateral pedal edema.
So my most likely diagnosis, it is VSD with failure, signs of failure. मम्मी बेटा ना करो. Well done. The answer is VSG. Very good, Dr. Saab. So, what is your second and third differential? It could be MR or TR, because there are 3 differentials or 3 DDs for pansystolic murmur. Well done. बिल्कुल ठीक बोला आपने. Thank you so much. अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि एमआर और टीआर आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं. बच्चा अब छोटा है, 4 इयर्स का है, तो एमआर कंजेंटल एमआर होगा, इसमें ज्यादा चांस है. टीआर भी बिल्कुल हो सकता है. अच्छा, समटाइम्स कुछ एग्जामिनर्स को आदत होती है और कहने की, क्या कैंडिडेट आंसर देता है फिर, लेकिन वो आगे से कहते हैं और और और. तो अगर एग्जामिनर और कर रहा हो, तो यू कैन पुट mitral valve prolapse or dilated cardiomyopathy or myocarditis as well down the list. In the differential diagnosis of VSD, you can put mitral valve prolapse, dilated cardiomyopathy or myocarditis down the list. Well done. So, examiner would love to ask you what is the difference between pansystolic murmur and hollow systolic murmur. ठीक है, तो आपने याद रखना है कि hollow systolic murmur is sustained during whole of systole equally, whereas pansystolic murmur does not sustain equally. Examiner can ask you, where does venous hum heard in precordium? Answer is, it is best heard below the clavicle and disappear by laying the child down and elevating legs. So venous hum is best heard below the clavicle. Examiner can ask you, what is the difference between hum and bruit? Hum is venous flow and bruit is arterial flow. Hum is venous flow and bruit is arterial flow. What are the causes of displaced apex beat? Cardiomegaly हो, apex beat displaced हो जाएगी, medial sternal shift हो, या scoliosis हो, या कोई भी chest deformity हो, तो apex beat displaced हो जाएगी. Examiner can ask you, what is small sign? Normal JVP is decreased during inspiration. जब inspiration होती है, JVP कम हो जाती है और increase हो जाती है during expiration. In constrictive pericarditis, JVP, instead of falling during inspiration, rises due to peripheral venous constriction. This is called small sign. Normally, inspiration के दौरान जो कम होती है वो नहीं होगी, बल्कि ज्यादा हो जाएगी. In constrictive pericarditis, this is a small sign. Epigastric pulsation, जैसे मैंने आपको कहा था कि जी जब आप जहाँ आप पैरास्टर्नल हीव देखते हैं, थ्रिल देखते हैं, ट्रैकिया देखते हैं, तो वहीं आपने एपिगैस्ट्रिक पल्सेशंस भी देखनी है. तो एग्जामिनर पूछेगा कि जी एपिगैस्ट्रिक पल्सेशंस आपने क्यों देखी, तो आप कहेंगे सर मैं एपिगैस्ट्रिक पल्सेशन इसलिए देख रहा था कि कहीं राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी तो नहीं है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में मुझे एपिगैस्ट्रिक पल्सेशन मिल जाएंगी, मुझे पल्सेटाइल लिवर में भी मुझे मिलती हैं एपिगैस्ट्रिक पल्सेशंस. अगर कोई एब्डोमिनल एओर्टा का कोई एन्यूरिज्म है तो उसमें भी मुझे एपिगैस्ट्रिक पल्सेशंस मिलती हैं. टॉप ऑफ द लिस्ट अपने राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी बोलना है. लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव के कॉजेस में राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी टॉप ऑफ द लिस्ट है. राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी. व्हाट आर फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस? एक तो मैंने बता दिया का स्मॉल साइन, इसके अलावा रेज जेवीपी रेज मिलेगी, नेक वेन्स प्रोमिनेंट मिलेंगी कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में. Which type of VSDs are more likely to close spontaneously? Muscular VSDs or membranous VSD? Of course, the muscular VSD बहुत chance है close करने का. Which aortic valve problem do you see in VSDs? Aortic valve regurgitation. जो VSDs होती हैं, later on they may have aortic valve regurgitation. What are indications of surgical closure of VSD? One of the best question तकरीबन हर एग्जाम में पूछा गया है कि जी
बताएं सर्जिकल इंडिकेशंस क्या हैं VSD की. So patient at any age with large defect in home clinical symptoms and failure to thrive cannot be controlled medically. बच्चे के जो symptoms हैं वो control नहीं हो रहे medically. Large VSD और बच्चा failure to thrive है. These are indications of VSD. एक दूसरी इंडिकेशन है infant between 6 and 12 months of age with large defects associated pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension है, स्टार्ट हो गई है, ठीक है. इवन सिम्टम्स कंट्रोल भी हैं लेकिन पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है, अब आप उसको नहीं रख सकते, आपको उसे सर्जिकली क्लोज करना है. पेशेंट ओल्डर देन 24 मंथ्स विद QPQS रेशियो ग्रेटर देन 2:1. थोड़े से बड़ा बच्चा है, 2 साल से बड़ा बच्चा है, QPQS रेशियो ग्रेटर देन 2:1 है, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ सर्जरी. सो सर्जिकल इंडिकेशंस ऑफ VSD ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए. What are two aims in the management of VSD? There are two aims in the management of VSD. Number one, to get the symptoms of heart failure under control. Heart failure के symptoms under control रखने हैं. And number two, prevent the development of pulmonary vascular disease, pulmonary hypertension. देखें, VSD में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? pulmonary hypertension ना डेवलप हो जाए, हार्ट फेलियर में ना चला जाए. ये दो चीजें कि आपने हार्ट फेलियर को कंट्रोल रखना है और pulmonary hypertension को कंट्रोल रखना है, बस आप कामयाब हैं. हार्ट फेलियर में जाने से रोकने के लिए उसको फिर क्या करते हैं लोग? डायरेटिक वगैरह देते रहते हैं कि डायरेटिक लेता रहे तो ताकि फेलियर में ना जाए. और पल्मोनरी हाइपरटेंशन को मॉनिटर करते हैं, अगर डेवलप हो जाए तो फिर बोसेंटन वगैरह देते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रीकॉर्डियम. वो छोटी सी आपको मैं ब्रेक देता हूँ, 5 to 7 मिनट्स की ब्रेक ले लें. किसी को चाय लेनी है, कॉफी लेनी है, वॉशरूम जाना है, हो आए. एंड देन वी विल स्टार्ट respiratory portions, short cases of respiration. So see you after a 7 minutes break. Assalamu alaikum, I am Dr. Junaid Jahangir and I am Senior Registrar in Pediatrics at Robert Penny Medical University. Today we are going to do examination of the chest in children. Assalamu alaikum, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है और मैंने आपको मुआयना करना है. इंशाल्लाह दौरान मुआयना आपको तकलीफ नहीं होगी. ओके, थैंक यू बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल, greeting, introduction, consent, proper exposure. Then do the inspection of the chest. When you are inspecting the chest, you should inspect it from bedside end, and then the foot end. During your inspection, you need to see, is there any scar mark, visible deformity, pectus carinatum, pectus excavatum, any bulge, any rash, oozing, etc. Then you need to measure the respiratory rate. Do the inspection from foot end. Then before starting palpation, rub the hand so that your hands may not be cold to the patient. You should be very gentle. Before starting palpation, look for any tenderness in the chest. Then compare the temperature of the skin of the chest with the rest of the body. Then do the chest expansion. Take a measuring tape with you. सांस लें बेटा, सांस लें, सांस लें, सांस लें. Normally the chest expansion is about 5 centimeters. Then see the chest movements with the help of your hands. बेटा सांस ले लंबे लंबे, सांस लें, सांस लें, सांस लें, फिर लें, सांस लें बेटा, फिर लें. When you are actually doing the
do inspiration and expiration, your thumbs move like this. So if there is reduced chest movements on one side, thumb of that side will not move, and the thumb of the other side will move. So you will get an idea that the chest movements on this side is decreased. Then after checking the chest movements, check the apex beat. Feel it, palpate it, localize it, then feel the trachea. With the two-finger method, feel the trachea, whether it is central or it's elevated to one side. Then do the percussion. When you are going to do percussion, then you need to understand that you have to percuss both from the front side and the back side. While doing percussion, you have to start from above the clavicle. First of all, percuss above the clavicle, then on the clavicle, then below the clavicle. On the right side, same steps on the left side, and then start percussing downwards, like I'm doing. You will go from second to fifth intercostal space, and then on the right side there will be liver, and on the left side there will be heart. So after doing percussion anteriorly till you reach at the liver on the right side, until you reach the heart at the left side, you will go laterally, and then you will start percussing on the lateral sides. Laterally from the fourth till the seventh intercostal space on both sides. While doing percussion, you have to make sure that you percuss along the intercostal spaces. Once you have done the percussion from the front side, the same steps should be repeated from the back sides. The inspection, the palpation, the percussion. Next is the vocal fragmentus. Sometimes the examiner expects you to do vocal fragmentus, sometimes they don't expect and they say that it's getting obsolete. So it's up to you whether you do vocal fragmentus or not. I must teach you the method of doing vocal fragmentus. You may do it before percussion as well. You have to place the hand like this, and you ask the patient to say teen teen teen. Beta bolo teen teen teen. Phir bolo teen teen teen. Bolo teen teen teen. Bolo teen teen teen. Bolo teen teen teen. बोले बेटा तीन तीन तीन, बोले तीन तीन तीन, बोले तीन तीन तीन. Okay. Then is the vocal resonance. Sometimes the student get confused whether the resonance was checking with the hand or the resonance was checking with the step. So just remember a mnemonic SR. SR means that the resonance is being checked with the step. So you have to place the step in your ears. You have to inform the patient कि आपने फिर से तीन तीन बोलना है, जब मैं ये रखूंगा तो आपने तीन तीन बोलना है. You have to check it on the both sides. बोले बेटा तीन तीन तीन. Laterally, बोलो तीन तीन तीन. बोले तीन तीन तीन. बोले तीन तीन तीन. Okay. So once you have done with the resonance, now the final step is auscultation. In auscultation, what the students make a mistake, they place the step for a very short time and then they
move it to the other side, then they move it to the other side. जल्दी जल्दी कर रहे हो. Make sure that you have to place the step for well time so that an inspiration and expiration takes place, and the examiner will get an idea that you have auscultated a full inspiration and expiration. तो लंबे लंबे सांस लेने. I'm not going to all the areas, but you need to listen to the inspiration and expiration in all the areas. First of all, anteriorly and then laterally. So once you have done the auscultation, then you need to do the relevant examination in the chest. And the relevant examination in the chest includes the hands. Look for the clubbing, it is relevant with the chest. Look for anemia, it is relevant with the chest. Look for BCG scar, it is relevant with the chest. And look for central cyanosis and the peripheral cyanosis, it is also relevant with the chest. And then maybe you need to find out lymphadenopathy, so check for the lymph nodes, the cervical and the axillary lymph node. The axillary lymph nodes are especially important in the examination of when you are suspecting pulmonary tuberculosis. So look for the lymph nodes, and then down. Edema is sometimes important, sometimes it may not be important, but the more important is whether associated any hepatomegaly patient is having some failure or not, and any other relevant and important thing. So once you have done the relevant examination, then you need to say thank you so much, and you need to cover the patient, which is very, very important. You have to make him dress again. So thank you so much. So that was the video. Now let me summarize the steps of chest examination for you. The first step is introduction, consent, and greeting. Second step is 30-second inspection with proper exposure. ये 30-second inspection with proper exposure, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी मुसीबतों से आपको बचा लेता है. Is the child mentally well, or is he looking mentally retarded? Is he looking into eyes? Is he maintaining an eye contact? Is there any obvious deformity? Is there any obvious distension? Is there any obvious edema? Is there any scar marks? Is there any obvious rash? Is he walking well? कोई टैक्सिया, कोई वेल्डिंग, कोई इंटेल्जिया, कोई स्ट्रोक तो नहीं है, कोई ऑब्वियस लार्ज हेड तो नहीं है, कोई ऑब्वियस शॉर्ट हेड तो नहीं है, कोई ऑब्वियस स्क्विंट, कोई ऑब्वियस एनजी, कोई ऑब्वियस फोलीज, कोई ऑब्वियस एबनॉर्मल मूवमेंट्स, कोई बहुत सारी चीजें इस 30-second इंस्पेक्शन में आपको पता लग जाती हैं. आपने बगैर हाथ लगाए खामोशी से तमाम शॉर्ट केसेस में 30-second इंस्पेक्शन विद प्रॉपर एक्सपोजर करनी है. प्रॉपर एक्सपोजर इसलिए कि अगर एक्सपोज नहीं पेशेंट, यू विल मिस द फाइंडिंग. इफ यू विल नॉट एक्सपोज द पेशेंट, यू विल मिस द फाइंडिंग. अब चेस्ट में उसकी चूंकि एक्सपोज हुआ होगा, तो आप इंपॉर्टेंट ये है कि देखें कि कुछ चेस्ट में ऑब्वियस डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई पेक्टस एक्सकैवेटम, कैरिनेटम, डिकपनिक तो नहीं है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में तो नहीं है बच्चा. ठीक है, चीजें रेलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है. Then you have to count the respiratory rate, you have to palpate the apex beat, and you have to locate the trachea. आप देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं. यार एपेक्स बीट के चेस्ट में क्या ताल्लुक? भाई चेस्ट में ताल्लुक है, एपेक्स बीट चेस्ट में भी करनी है, पैल्पेट करनी.
फिर आप चेस्ट एक्सपेंशन देखेंगे और मूवमेंट देखेंगे, चेस्ट एक्सपैंड कैसे हो रही है, ठीक है, और चेस्ट की मूवमेंट्स दोनों साइडों में बराबर है, एक साइड पे ज्यादा एक साइड पे कम तो नहीं। फिर आप उसको वोकल फ्रैमेटस देखेंगे, फिर आप परकस करेंगे, और फिर आप रेजोनेंस देखेंगे। फ्रैमेटस आप स्टैट से नहीं देखते, रेजोनेंस आप स्टैट से देखते हैं। फिर आप ऑस्कल्टेट करते हैं, उसमें दोनों साइडें करनी है, फ्रंट से भी जो तमाम स्टेप जो फ्रंट से करेंगे वो तमाम स्टेप्स बैक से भी करने हैं। फिर उसके बाद रेलिवेंट तमाम शॉर्ट केसेस में देखिए, एक फाइनल ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट जो चेस्ट एग्जामिनेशन करता है या प्रिकॉर्डियम करता है, तो उसके साथ रेलिवेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ बहुत रेलिवेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ एग्जामिनर नोट करेगा कि आपने रेलिवेंट किया या नहीं किया। क्यों? चेस्ट, ठीक है, चेस्ट की कमांड थी, तो क्या चेस्ट के साथ आपने पैलर देखा, क्लबिंग देखी, बीसीजी देखा, लिम्फ नोड देखे, थ्रोट नोज देखा? क्योंकि इसी से आपकी डिफरेंशियल्स डिपेंड करते हैं, डिफरेंशियल्स। तमाम शॉर्ट केसेस में एंथ्रोपोमेट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में बड़ी आसानी रहती है। मिसाल के तौर पे चेस्ट एग्जामिनेशन, आप इफ्यूजन है केस आपका, एंथ्रोपोमेट्री की हुई है, आपको पता है कि यार ये बच्चा एज और के लिहाज से इसका हाइट भी कम है, वेट भी कम है, और इफ्यूजन है, तो आप ट्यूबरकुलोस इफ्यूजन बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि सर चूंकि बच्चे की हाइट भी कम है, वेट भी कम है, इफ्यूजन मुझे मिली है, मेरे ख्याल में ये ट्यूबरकुलोस इफ्यूजन है। हाइट वेट ठीक है बिल्कुल, आप कह सकते हैं सर मेरे ख्याल में ये निमोनिक इफ्यूजन है, क्योंकि हाइट वेट ठीक है, मतलब क्रॉनिसिटी नहीं है, ठीक है ना। ट्यूबरक्लोसिस तो आस्ता आस्ता क्रॉनिसिटी, क्रॉनिक डिजीज होती है, अंदर अंदर चली जा रही होती है, बात को पता ही नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट होता है एंथ्रोपोमेट्री में। इसी तरह जब एब्डोमेन का मैं आपको पढ़ाऊंगा, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली इन अ फेलियर टू थ्राइव चाइल्ड पॉइंट्स टुवर्ड्स स्टोरेज डिसऑर्डर के जी, लंबे अरसे से चला जा रहा है, थ्राइव नहीं कर रहा, अंदर अंदर लिवर भी लार्ज है, स्प्लीन भी लार्ज है, प्रॉब्ली कुछ स्टोरेज डिजीज चल रही है। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली इन अ वेल थ्राइविंग चाइल्ड, तो फिर अब एक्यूट कॉजेज ज्यादा सोचते हैं। सो एंथ्रोपोमेट्री की ये इंपॉर्टेंस है। द लास्ट स्टेप इज कवर एंड थैंक्स। आई नीड एनी वॉलंटियर टू रिपीट these steps. चलो, डॉक्टर फातिमा जमीर, डॉक्टर फातिमा प्लीज रिपीट करें स्टेप्स। Assalamualaikum, sir. Okay, the first step is introduction and consent and greeting. Always proceed towards like right side, make the patient comfortable. After that, step 2, 30-second inspect with proper exposure. Step 3, count the respiratory rates. Step 4, palpate the apex beat and locate the trachea. Step 5, chest expansion and movement. Step 6, vocal fremitus. Step 7, percussion. Step 8, vocal resonance. Step 9, auscultation. Step 10, GP for the differentials like paler, clubbing, BCG scar, lymph node, throat nose examination. And step 11 for anthropometry in order to exclude the chronic conditions, either they are acute or chronic. And step 12 is cover and thanks. Thank you so much. Now, very famous Viva questions. What is the difference between empyema and parapneumonic effusion? Empyema में the pH is less than 7.2. In parapneumonic effusion, the pH is more than 7.2. In empyema, pleural fluid effusion sugar is less than 40. Pleural fluid की जो sugar होगी ना, so effusion में वो less than 40 होगी, जबकि यहाँ पर parapneumonic में वो more than 60 होगी. LDH will be more than 1000 international per liter in empyema, whereas in parapneumonic effusion the LDH is less than 1000. So sugar pneumonia में ज्यादा है और जो LDH है वो empyema में ज्यादा है. फिर एक बहुत ही मशहूर ज़माना क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि जी is the effusion transudative or is it exudative? What are the causes of transudative effusion? What are the causes of exudative effusion? What are the characters of transudative effusion? What are the characters of exudative effusion? इस पे माफी नहीं है, पक्का फेल है जिसको ये चीजें नहीं आती. ट्रांसुडेटिव प्लूरल effusion के causes में फेलियर्स हैं, जैसे हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, रीनल फेलियर है, नेफ्रोटिक है, यानी हाइपोप्रोटेनेमिक स्टेट्स है, वो तमाम कंडीशंस जिनमें ऑन कार्डियक प्रेशर कम हो जाता है वो ज्यादातर इसमें आती हैं ट्रांसुडेटिव प्लूरल effusion में.
चाहे वो हार्ट का फेल होना है या लिवर का फेल होना है या किडनीज का फेल होना है या नेफ्रोटिक है। सो एक्सुडेटिव प्लूरल effusion में वो कंडीशंस हैं जिनमें इन्फ्लेमेशन है, जिन which involves infection and inflammation and chronicity, maybe autoimmunity, maybe malignancy, maybe TB, maybe malignancy। ये 3-4 टॉप के ये कॉज याद कर लें, काफी हैं, अगर सारे नहीं भी याद होते तो। The difference between wheeze and stridor. Wheeze has a musical whistling sound and can be described as a loud raucous audible without a stethoscope. स्ट्राइडर भी विदाउट स्टेथोस्कोप सुनाई देता है, ऊंची आवाज होती है, सिमिलर टू वीज होती है, बट इट इज due to obstruction of the major airways by some tumor or some foreign body। इसमें थोड़ा obstruction का element है, इसमें bronchoconstriction का element है। It is due to narrowing of the small airways। It is audible only during inspiration। Stridor सिर्फ inspiration में सुनाई देता है, ठीक है। फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि जब आप 30 सेकंड इंस्पेक्शन करेंगे तो देखना है कि चेस्ट में डिफॉर्मिटी तो नहीं, और रेस्पिरेशन का आपका केस है, ज्यादा चांस है कि आपको कोई प्रैक्टिस कैरिनेटम में प्रैक्टिस एक्सकेवेटम मिल जाएगा। ये इतना अनकॉमन नहीं है, अक्सर मिल जाता है। और फिर अगर मिलता है तो जरूर उस पर सवाल होंगे। तो आपका क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए अबाउट प्रैक्टिस कैरिनेटम एंड एक्सकेवेटम। एक्सकेवेटम में केव का वर्ड आता है। केव केव क्या होता है? गार। गार क्या होता है? पहाड़ के अंदर एक कोई कमरा टाइप चीज। सो एक्सकवेटम में चूंकि केव आता है और केव पहाड़ के अंदर होता है, तो एक्सकवेटम से याद रख लें कि इसमें छाती अंदर की तरफ धंस जाएगी। पहली क्लियर चीज याद करें, मिक्सिंग होती है, स्टूडेंट बहुत मिक्स करते हैं। अगर एक्सकवेटम में अंदर की तरफ जाएगी तो कैरिनेटम में छाती बाहर की तरफ हो जाएगी। एक्सकवेटम का दूसरा नाम फनल चेस्ट है। फनल क्या होता है? कोई चीज अंदर की तरफ, जब अंदर की तरफ होती है ना, वो फनल बनता है। कैरिनेटम का दूसरा नाम है पिजन चेस्ट। पिजन पिंजरा बाहर की तरफ होगा। देयर इज प्रोमिनेंस ऑफ द स्टर्नम एंड कॉस्टल कॉर्ड, ठीक है। अब एक्सकवेटर में केव का वर्ड था। केव पहाड़ में होता है। पहाड़ में केव कुदरती होता है ना, किसी ने खुद खोदा तो नहीं होता, कुदरत की तरफ से होता है। गारे हेरा आज भी मौजूद है 1400 साल गुजरने के बाद। तो ये चीज कुदरती है, ये एक डेवलपमेंटल एनॉमली है, ये बाय डिफॉल्ट चीज प्रेजेंट है। यानी इस ये जरूरी नहीं है कि ये किसी डिजीज की वजह से, इट कैन बी डेवलपमेंटल एनॉमली। बाहर आ जाती है चेस्ट, ये किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से। ये अंदर कोई अंदर से एक चीज बाहर इसलिए आ गई कि अंदर कुछ चल रहा है। अंदर क्या चल रहा है? मे बी अ chronic respiratory disease, maybe a chronic cardiac disease and rickets as well। अंदर कोई बीमारी चल रही तभी चेस्ट बाहर आ गई है। अंदर बीमारी क्या हो सकती है? कोई chronic respiratory disease या cardiac disease या rickets। ज्यादातर respiratory disease होती है, ठीक है। ज्यादा चांस है कि रेस्पिरेटरी क्रॉनिक डिजीज हो, लेकिन रिकेट्स के में भी पेक्टस कैरिनेटम होता है। प्लीज डू रिमेंबर वन ऑफ द डिफरेंशियल्स ऑफ पेक्टस कैरिनेटम इज रिकेट्स। एक्सकवेटर में चेस्ट अंदर की तरफ है, तो एक चीज अंदर धंस गई है भाई, अंदर इतनी जगह तो है नहीं, तो फिर डेफिनेटली वो नॉर्मल कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन के साथ इंटरफेयर करेगी, ठीक है ना। अंदर तो अल्लाह ने जगह बनाई हुई थी लंग्स के लिए। अब अगर एक चीज अंदर चली गई है कुदरती तौर पे, तो फिर लंग्स में थोड़ा सा फंक्शन इतनी स्मूथ नहीं होगी। यही बच्चे बार चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, क्योंकि नॉर्मल एक कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन थोड़ा सा कम्प्रोमाइज हो जाता है इन बच्चों। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस दैट पुश द ट्रैकिया एंड पुल द ट्रैकिया? शिफ्टिंग ऑफ ट्रैकिया आपको, जो शिफ्टिंग ऑफ एपेक्स बीट आपको आनी चाहिए। So conditions which pull the mediastinum towards the disease side is collapse of the lung and fibrosis of the lung। ये पुल करते हैं। आप जिस कमरे में बैठे, इमेजिन करें कि कमरे की एक दीवार से पानी का एक रेला आता है, सैलाब दूसरी तरफ से आता है, या आंधी आती है, तो आप क्या होंगे? आप पुश हो जाएंगे, आप दूसरी तरफ उड़ के जाएंगे। सो एयर या पानी पुश कर देता है। जबकि आप कमरे में बैठे हैं, इमेजिन करें कि एक कमरे में एक बड़ा सा होल क्रिएट हो जाए, तो आप पुल हो जाएंगे। होल क्या है? होल एक कमरे का क्लैप्स कर जाना है, ये कमरे का फाइब्रोज हो जाना है। सो कोई भी चीज जब क्लैप्स या फाइब्रोज हो तो उसका पुलिंग इफेक्ट होता है, और जब पानी या हवा है तो उसका पुशिंग इफेक्ट होता है।
वोकल फ्रेमेटस की कॉजेज इंक्रीज हैं या डिक्रीज हैं, एक बात याद रखना जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, अगर वोकल फ्रेमेटस के कॉजेज इंक्रीज बता रहे हो तो वोकल रेजोनेंस के कॉजेज भी इंक्रीज बताओ, अगर वोकल फ्रेमेटस के कॉजेज डिक्रीज बता रहे हो तो फिर वोकल रेजोनेंस के कॉजेज भी डिक्रीज बताओ। गलती क्या करते हैं, एक चीज ऊपर करते हैं एक नीचे कर देते हैं। इंक्रीज वोकल फ्रेमेटस कंसोलिडेशन, कैविटेशन और कोलैप्स विद पेटेंट मेन ब्रोंकस में होता है। जब अंदर देखिए नॉर्मली लंग्स में क्या एयर है, तो एयर में तो साउंड बहुत अच्छा जो है ना वो ट्रैवल नहीं करता, साउंड ट्रैवल्स मोर इन द सॉलिड। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा था ना कि साउंड ट्रैवल्स मोर इजीली इन द सॉलिड मीडियम एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड एयर। तो नॉर्मली तो लंग्स हैं, लंग्स अगर एयर कम होती है वो कंसोलिडेट होते हैं या कैविटेट होते हैं तो फिर वोकल फ्रेमनेस बढ़ जाएगा, साउंड ज्यादा अच्छा ट्रैवल करेगा। और अगर नॉर्मल जो एयर है वो और ज्यादा हो जाए, ज्यादा एयर हो जाए, नीमोथोरैक्स हो जाए तो फिर साउंड और कम हो जाएगा, डिक्रीज वोकल फ्रेमनेस हो जाएगी। या अगर एयर की जगह पानी आ जाए तब भी वोकल फ्रेमनेस कम हो जाएगा। सो इस तरह याद रखें, कॉन्सेप्ट लेके याद करें ताकि वो रट्टा ना लगाना पड़े। कोलैप्स का जहां तक ताल्लुक है, हमेशा कोलैप्स विद पेटेंट मेन ब्रोंकस का कोई और मतलब है, कोलैप्स विद ऑब्स्ट्रक्टिव मेन ब्रोंकस का कोई और मतलब है। ऑब्स्ट्रक्टेड मेन ब्रोंकस एग्जाम में ना कह देना कि सर मेरे बच्चे का ना मेन ब्रोंकस ही ऑब्स्ट्रक्टेड है। क्यों, क्यों ना कहना, क्योंकि ये बच्चा बड़ा सिक होगा यार, किसी का मेन ब्रोंकस ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता। कैन यू इमेजिन कि वो कितना सिक बच्चा हो। सो ये किताब की हद तक तो ठीक है, इम्तहान में प्रैक्टिकली अपने बच्चे पे ना कह देना सर इस बच्चे का तो मेन ब्रोंकस ऑब्स्ट्रक्ट है। बातों का रटा लगाया होता है ना, हम बोल पड़ते हैं ये बड़ा सिक बच्चा होगा, ये इम्तहान में नहीं रखा होगा। हाँ, डिफरेंशियल की हद तक सुनाने के लिए जब एग्जामिनर और बोल रहा हो तो बेशक बोल देना। तो अब ऑब्स्ट्रक्टेड मेन ब्रोंकस का मतलब क्या है कि एयर अंदर तो आ गई है, वापस बाहर नहीं जा रही, एयर अंदर ट्रैप हो गई है। तो अगेन देयर इज मोर एयर, तो मैंने क्या कहा था, जब मोर एयर होती है न्यूमोथोरैक्स टाइप चीज में तो फिर वो वोकल फ्रेमनेस डिक्रीज हो जाता है। पेटेंट मेन ब्रोंकस का मतलब ये है कि एयर इन एंड आउट हो रही है, ठीक है, कोलैप्स है लेकिन इन एंड आउट हो रहा है, तो ओवरऑल वोकल फ्रेमनेस आपको ज्यादा ही मिलेगा ना। परकशन नोट, नॉर्मल परकशन नोट कैसा होता है, रेजोनेंट होता है। नॉर्मल लंग्स में हमारे क्या है, एयर है। अगर ये एयर ज्यादा हो जाए, जैसे नीमोथोरैक्स में ज्यादा हो जाती है, एम्फाइजीमा में ज्यादा हो जाती है ना, एयर ट्रैप हो जाती है अंदर, तो नॉर्मल हमने कहा रेजोनेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपर रेजोनेंट। फिर याद रखें कि अगर कोई सॉलिड ऑर्गन है, जैसे कोई लिवर है या हार्ट के ऊपर कोई बंदा परकस करता है, तो आपको नोट कैसे मिलेगा, डल मिलेगा। क्यों, ये सॉलिड है। और अगर इफ्यूजन हो जाए, पानी आ जाए, तो पानी में मैंने आपको पहले बताया ना कि जो साउंड वेव्स होती हैं, ये क्या है, सारी वेव्स, ये परकशन का जो साउंड है, ये जो फ्रेमेटस है, ये जो रेजोनेंस है, ये एक्चुअली तो ये साउंड वेव्स है ना। You are judging the quality and intensity and the clarity of sound waves. कहीं आप इनको रेजोनेंट, कहीं हाइपर रेजोनेंट बोल रहे हैं, कहीं इनको इंक्रीज, कहीं डिक्रीज कह रहे हैं, कहीं इनको डल बोल रहे हैं, कहीं इनको स्टोनी डल बोल रहे हैं। सो ये मीडिया पे डिपेंड करता है। मीडिया जब सॉलिड था, चाहे वो लिवर था, हार्ट था, या कंसोलिडेशन थी, कोलैप्स था, या थिकनिंग थी, तो आपने कहा यार इट्स जस्ट अ डल, इट्स अ डल, समथिंग डल। जब मीडिया फ्लूइड हो गया, मैंने आपको बताया कि पानी में जो है वो और कम हो जाती है साउंड वेव्स, तो आपने कहना है स्टोनी डल हो गया। अब इसकी मिसाल इस तरह भी है कि डल जो होता है वो लकड़ पे अगर आप परकस करें तो वो डल मिलेगा। अगर आप अपने घर के फ्लोर पे, चाहे फ्लोर पे फर्श है, टाइल है, मार्बल है, जो भी है, उस पे अगर आप परकस करेंगे ऑन अ स्टोन, तो वो आपको स्टोनी डाल मिलेगा। वो बहुत ही डाल होता है, उसकी मतलब आवाज गूंजती नहीं है। सिंपल डाल होता है, उसकी आवाज में थोड़ी सी गूंज होती है। वो लकड़ पे अगर आप परकस करें तो वो आपको पता लगेगा, ठीक है।
ये डल और स्टोनी डल का डिफरेंस इसलिए क्लियर होना चाहिए, एग्जाम वाले दिन आप इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्लिक कर जाएंगे, यार ये डल है, ये स्टोनी डल है, मुझे कंसोलिडेशन बोलना है या मुझे फ्यूजन बोलना है। यही चेस की गेम है सारी। चेस देखने में सिंपल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं, उनको यही समझ नहीं आ रही थी ये डल है, ये स्टोनी डल है, मैंने फ्यूजन बोलना है, मैंने कंसोलिडेशन बोलना है, ऊपर की फाइंडिंग ऊपर, नीचे की नीचे लगा रहे होते हैं। कुछ जगहों पे जो परकशन नोट है वो बड़ा सा इम्पेयर्ड सा होता है, जैसे जंक्शन ऑफ द लिवर एंड हार्ट विद द लंग एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस में एंड पल्मोनरी कंसोलिडेशन कोलैप्स में बाजू का थोड़ा इम्पेयर हो जाता है। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी इतनी आपने यूज नहीं करनी। इम्पेयर्ड शॉर्ट केस है, 5 मिनट का टाइम है, उस पर आपने ज्यादा यस नो वाली बातें करनी होती हैं, ठीक है, टू द पॉइंट बातें करनी होती है, लंबी बातें नहीं, क्लियर बातें करनी होती है। जैसे एग्जामिनर को ये पता लगे मेरा स्टूडेंट क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, यस इसकी अप्रोच अच्छी है। जैसे आप अगर ज्यादा चांस है कि अगर अगर परकशन डल है, परकशन डल है, तो फिर आपने चुप करके या उसको जस्ट डल बताना है या स्टोनी डल बताना है। आपने चुप करके फैसला करना है कि मैं ये मेरा केस कंसोलिडेशन कोलैप्स का केस है या इफ्यूजन का केस है। वहां पर कोई तीसरी बात करके खामखा अपने आप को कंफ्यूजन में नहीं डालना। नेक्स्ट है कि examiner would love to ask you what is the difference between plural rub and crepitations. Plural rub is audible at the end of inspiration and just after the beginning of expiration. It's audible at the end of inspiration and just after the beginning of expiration. Crepitations are audible only during inspiration. Craps आपको कर कर की आवाज में सांस अंदर लेते हुए सुनाई देते हैं। Craps are audible only during inspiration. Pleural rub increases in intensity on pressing the stethoscope. Pleural rub जब स्टेथ को थोड़ा सा प्रेस करो और खूबसूरत सुनाई देंगे, इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी। क्रैप्स में ऐसा कुछ नहीं है जी, आप स्टेथ प्रेस करें या ना करें, क्रैप्स क्रैप्स है। Plural rub remains unchanged on cuffing. Cuffing पे unchanged रहते हैं। Craps usually change on cuffing. Craps usually change on cuffing. Examiner would love to ask you about respiratory failure questions. He may ask you what is the difference between type 1 respiratory failure and type 2 respiratory failure. तो आपको पता होना चाहिए कि in type 1 respiratory failure, the PaO2 is reduced and PaCO2 is normal or low. जो type 1 respiratory failure है, partial pressure of oxygen कम होता है, और partial pressure of carbon dioxide normal होता है या low होता है। टाइप 2 में partial pressure of oxygen तो कम होता है, लेकिन PaCO2 is elevated. So टाइप 2 में O2 तो कम होता है लेकिन CO2 एलिवेटेड होता है, जबकि टाइप 1 में तकरीबन दोनों ही कम होते हैं। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर के कॉज में ब्रोंकल एस्थमा है, एस्थमा, निमोनिया, पल्मोनरी एडीमा, एम्बोलिज्म, एलर्जिक एल्वेलाइटिस। बस पहले 3-4 याद कर लो, एस्थमा, निमोनिया याद कर लें, 2-3 बस, बाबा क्वेश्चन तैयार करना है ना। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एम्फाइजीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एम्फाइजीमा या वो कंडीशन जो जिनमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है, काफोस्कोलियोसिस का वगैरह, ये जो कंडीशंस होते हैं इनमें टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। ठीक है, ज्यादा बच्चों में निमोनिया कॉमन है, तो निमोनिया का सवाल होगा कि निमोनिया में कौन सा होता है, तो आपने कहना है टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, बिकॉज़ निमोनिया इज वेरी कॉमन। सो निमोनिया वाले बच्चों में अक्सर आपको PO2 भी रिड्यूस मिलती है और PaCO2 एलिवेटेड नहीं मिलती, मे बी लो मे बी नॉर्मल हो, एलिवेटेड नहीं होती। ठीक है, सो इन बच्चों में इसलिए निमोनिया के बच्चों को अक्सर आप ऑक्सीजन पे लगे हुए देखते हैं। ठीक है ना। PCO2 स्टूडेंट्स उस वक्त एलिवेटेड होता है, कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, CO2 उस वक्त एलिवेटेड होगा जब अंदर एयर ट्रैप हो रही होगी, एयर ट्रैप हो रही होती है, और एयर ट्रैप क्रॉनिक कंडीशंस में हो रही होती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक एम्फाइजीमा, स्कोलियोसिस, चेस्ट कैविटी का साइज कम है, काइफोसिस, ये जो कंडीशंस होती है ना जिनमें चेस्ट डिफॉर्मिटी या चेस्ट की कैविटी कम है अंदर, या रिस्ट्रिक्शन है अंदर,
या एयर ट्रैप हो रही है, उन कंडीशंस में फिर CO2 बढ़ना शुरू हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन एक्सुडेटिव एंड ट्रांसुडेटिव थोड़ा सा मैंने पहले पढ़ाया था, कुछ और इसके आपस के डिफरेंसेस आपने याद करने। एक्सुडेटिव में इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी होती है, और ट्रांसुडेटिव में मैंने बताया कि उसमें ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है। कॉजेज में बता चुका हूँ पहले। प्रोटीन कंटेंट याद कर लें कि एक्सुडेटिव में प्रोटीन कंटेंट इज मोर देन 3 grams per deciliter. In transudative, protein content is less than 3 grams per deciliter. TLC in exudative is more than 1000 because exudative inflammation infection की वजह से हो रहा है, तो ऑब्वियसली TLC विल बी मोर इन एक्सुडेटिव। जबकि ट्रांसुडेटिव में तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो रहा है ना, वहां इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन इतना एलिमेंट नहीं है, सो TLC विल बी लेस। The LDH in fluid in exudative is more than 2000 international units, जबकि transudative में वो more than 200 international units है, और यहाँ पे भी more than 200 international units ही है। Fluid to serum protein ratio is more than 0.6 in exudative, इधर भी more than 0.6 ही है। जो common है वो बेशक आप ना याद कर लें, जो differences हैं उनके याद कर लें। So LDH in fluid and fluid serum protein ratio और fluid to serum LDH ratio तकरीबन दोनों में एक जैसी पैरामीटर्स हैं इनके। ग्लूकोज का फर्क है, ग्लूकोज याद कर लें, एक्सुडेटिव में लो होती है जबकि ट्रांसुडेटिव में नॉर्मल होती है। एक्सुडेटिव में चूंकि बैक्टीरिया ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना, तो बैक्टीरिया तो ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए ग्लूकोज लो हो जाएगी, ये याद कर लें। एक्सुडेटिव में चूंकि बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, बैक्टीरिया ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए, सो इनकी जो एक्सुडेटिव में ग्लूकोज कम हो जाती है जबकि ट्रांसुडेटिव में नॉर्मल होती है। नमूनिया चूंकि कॉमन होता है, वार्ड में पड़ा होता है, तो वो एग्जाम में भी आ सकता है। तो आप याद कर लें कि निमोनिया के कॉजेटिव एजेंट्स एज वाइज याद कर लें। न्यू बॉर्न्स में इकोलाई, GBS, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जिसे बोलते हैं, क्लैप्सिलस सूडोमोनास कॉमन है। फिर इन्फेंसी में जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, ख़ुसूसन 6 माह 7 माह की एज में, आपको पता है कि फिर ये नीमोकोकस स्टफ ए भी आ जाता है, हेबी स्टफ भी आ जाता है। फिर थोड़े बड़े बच्चे में माइकोप्लाज्मा भी आता है। नीमोकोकस बड़े बच्चों में नीमोकोकस भी आ सकता है, माइकोप्लाज्मा भी आ सकता है। और 40 to 50% of all pneumonias are viral. Please do remember 40 to 50% of all pneumonias are viral, and the top of the list viral जो virus जो top of the list है वो respiratory syncytial virus है। But RSV के अलावा इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, पैरा इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, एडिनो भी हो सकता है। टॉप ऑफ द लिस्ट रेस्पिरेटरी सिंसिटियल है, लेकिन इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनो भी पूछ लेते हैं इम्तिहान में कि व्हाट आर अदर वायरसेस दैट कैन कॉज निमोनिया इन चिल्ड्रन, दे कैन बी इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा एंड एडिनो। ठीक है। और बाजू का एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वाइवे में कि अगर लोबार नमूनिया तो कौन सा ऑर्गेनिज्म ज्यादा चांस है, और ब्रोंको नमूनिया तो ज्यादा कौन सा ऑर्गेनिज्म। लोबार में स्टेफिलोकोकस का ज्यादा चांस है, और ब्रोंको नमूनिया में स्ट्रेप्टोकोकस का ज्यादा चांस है। ये फिंगर टिप्स पे याद रखना। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नमूनिया, ठीक है, पढ़ ले, एक दफा आइडिया होना चाहिए, अगर कोई पूछ ले, पुराने एग्जामिनर बाजू का पूछ लेते हैं। सो एक स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन है, एक स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन है, एक स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन है। स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन में ट्यूबुलर टाइप ऑफ ब्रोंकियल ब्लीडिंग होती है। स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन में भी ट्यूबुलर टाइप ऑफ ब्रोंकियल ब्लीडिंग होती है। और स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन में कोर्स क्रैकल्स होते हैं, जब जब नमूनिया रिजॉल्व हो रहा होता है, जब कोर्स क्रैकल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, इतना कॉमन क्वेश्चन नहीं है, कोई कोई बुढ़ा एग्जामिनर पूछ बाजू कर लेता है। Now, let's start the interactive session. That was the static session. अब हम interactive session start करते हैं। इसमें scenarios होंगे, आपने one by one वॉलंटियर करना है और scenario पढ़ना है। अगर किसी को आंसर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फ्रेंडली सेशन है, किसी की बेइज्जती नहीं है। आप हेल्प बोलेंगे तो आंसर ऑडियंस में से कोई करेगा, नहीं तो मैं कर दूंगा। स्टेप्स ऑफ चेस्ट एग्जामिनेशन ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द सिनेरियो। जी, I need one volunteer to read out the scenario, please. Hello, yeah, sir. I can read. जी प्लीज। 5-year-old boy present to you with increased vocal fermetus and increased vocal resonance. There is bronchial breathing in the right middle zone of the chest. The percussion note is dull in the right middle zone of the lung. Trachea is pulled toward the side of the
toward the side, right side. So it is bronchial breathing is increased and vocal formatus is increased and pulled toward the side. It is collapse with pattern main bronchus. अच्छा ठीक है, आपका डिफरेंशियल तो ठीक बताया, लेकिन नंबर 1 पे यही रखना है या इससे भी थोड़ा सा बेहतर कुछ चीज रखना चाह रही हैं आप? कंसोलिडेशन। शाबाश, जो कॉमन है वो जरा पहले Hmm. बोल दें, कंसोलिडेशन, ठीक है। So और why नंबर 2 पे trachea is pulled? Why trachea is pulled? Is it in consolidation? नहीं, वो तो कैविटेशन उसमें भी हो सकता है, फाइब्रोसिस में भी हो सकता है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन आप बोल दें कि माय फर्स्ट डिफरेंशियल इज कंसोलिडेशन, क्योंकि ये कॉमन ज्यादा है ना, ठीक है। कोलैप्स विद पोर्टेंट मेन ब्रोंकस गलत नहीं है, ठीक है, बट ये लेकिन यू नो कॉमन नहीं है। थोड़ा सा लेस कॉमन है ना, तो हम कंसोलिडेशन ज्यादा कॉमन, तो हम फर्स्ट पे कंसोलिडेशन रखते हैं, सेकंड पे कैविटेशन, थर्ड पे फाइब्रोसिस और फोर्थ पे कोलैप्स विद पोर्टेंट मेन ब्रोंकस आप रख लें। कंसोलिडेशन कैविटेशन बेसिकली एक ही चीज है, आप सेकंड पे फाइब्रोसिस, थर्ड पे कोलैप्स विद पेटेंट मेन ब्रोंकस भी आप रख सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी अप्रोच ठीक थी, वेल डन। सिनेरियो नंबर 2 पढ़ें प्लीज। अभी को डॉक्टर साहब दूसरी पढ़ेंगे, डॉक्टर नीला आप पढ़ें। डॉक्टर नीला काइंडली रीड आउट दिस सिनेरियो। आई थिंक डॉक्टर नीला सो गई हैं, कोई और पढ़ ले। Sir, this is Dr. Kuratulan. May I read it? यस डॉक्टर कुरत। A 5-year-old boy presents to you with left-sided bulge in the chest with decreased chest movement on the left side and decreased vocal pharmacesis and decreased vocal resonance. There is a decreased breathing the left lower zone of the chest. The percussion note is stony dull in the left lower zone of the lung. The trachea is pushed towards the right side. So, sir, my differentials would be there is a fluid on the left side, the most probably pleural effusion. Okay, very good. Number 1 is pleural effusion, number 2 and number 3 Pleural effusion and parapneumonic. Because sir, percussion nose is stony dull, there must be some fluid. So pleural, I will go with pleural effusion or parapneumonic abscess. चलें, Sir, एक this होगी, is what I can produce. This is एक what I होगी, can आपने क्या produce, sir. जी जी जी, sir. शाबाश, वेरी गुड, I ठीक need है डॉक्टर help, कुरत। sir. हाँ ठीक है, वेल डन डॉक्टर कुरत, आप ठीक कर रही हैं, सही जा रही हैं। आप कह सकती हैं कि माय फर्स्ट डिफरेंशियल इज पैरानिमोनिक इफ्यूजन, ठीक है। माय सेकंड डिफरेंशियल इज, अब हिस्ट्री तो नहीं पता ना, तो इट कैन बी ट्यूबरकुलस इफ्यूजन एज वेल। Exactly, sir. एंड नंबर 3 पे आप और क्या बोल सकती हैं? Pneumothorax. नीमोथोरैक्स बोल सकती हैं, शाबाश, क्योंकि उसमें भी जो है ना वो वोकल फ्रामेटस और वोकल रेजोनेंस तो कम हो जाता है ना। जी सर। अच्छा, क्योंकि और एयर क्या? लंग के आउटसाइड है तो इस वजह से ये सारी चीजें भी डिक्रीज मिलेंगी हमें। नहीं, बट स्टोनी डल परकशन नोट पे हम नीमोथोरेक्स रख सकते हैं, उसमें हाइपर रेजोनेंस मिलेगा ना हमें। हाँ, थोड़ा सा है कि उसमें परकशन नोट इतना फिट नहीं आता। एम्पाइमा कर सकते हैं, एम्पाइमा आप एम्पाइमा। इसमें, एम्पाइमा पे सारे लोग एग्री कर रहे हैं। जी सर, एम्पाइमा। हाँ, एम्पाइमा सही है। एम्पाइमा कर लेते हैं नंबर 1 पे, वो ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। और किसी के माइंड में कुछ आ रहा है तो ऐड कर दें। सर इसमें हम हीमोथोरिक्स वगैरह कुछ रख सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें भी फ्लूइड होगा। हाँ ठीक है, एम्पाइमा कर लें, नंबर 2 हीमोथोरैक्स कर लें। देखना, अब ये डिस्कशन का ये फायदा होता है कि ये चीजें रिफाइन हो जाती हैं। हीमोथोरैक्स कर लें,
ठीक है, न्यूमोथोरैक्स को थोड़ा डाउन द लिस्ट रख लें। अच्छा, कोलैप्स विद ऑब्स्ट्रक्टेड मेन ब्रोंकस हो सकता है? Yes. जी सर, हो सकता है। हो सकता है। उसके फेवर में क्या चीजें हैं? डिक्रीज वोकल फॉर्मेटिसिस है, रेजोनेंस है, लेकिन उसमें तो सर इंक्रीज होंगे अगर कोलैप्स विद ऑब्स्ट्रक्टेड मेन ब्रोंकस होगा। उसमें ठीक है इंक्रीज होंगे, शाबाश। जी मैं देख सर। रहा था कि आप लोग सो रहे हो या जाग रहे हो। भाई सर उसमें इंक्रीज कोलैप्स, होंगे। कोलैप्स जो होता है ना, अगेन कोलैप्स सॉलिड मीडियम से बन गया वो। कंसोलिडेशन और कैविटेशन के साथ बनता है, ठीक है, ऐसे जी ही है ना? सर। जी जी। कोलैप्स की इसके जो डिफरेंशियल है, ये आप कंसोलिडेशन और कैविटेशन के साथ ज्यादा रखें। इफ्यूजन के साथ आप एम्पाइमा, हीमोथोरैक्स और फिर किसी हद तक आप न्यूमोथोरैक्स इसलिए रख सकते हैं कि बहरहाल वोकल रेजोनेंस, वोकल पैरामीटर्स न्यूमोथोरैक्स में भी कम हो जाएगा। एयर जब बहुत ज्यादा आ जाती है तो फिर जो है जो एयर एंट्री कम हो जाती है ना, इसमें न्यूमोथोरैक्स में भी एयर एंट्री इतनी अच्छी नहीं होती। कहने का मकसद, न्यूमोथोरैक्स को मैंने क्यों रखा डाउन द लिस्ट, क्योंकि एयर एंट्री न्यूमोथोरैक्स में इतनी अच्छी नहीं होती। आपको नॉर्मल ब्रीदिंग पे एयर एंटर होती हुई, एग्जिट होती हुई नहीं सुनाई दे रही होती, तो पैरामीटर्स और रेजोनेंस कम ही मिलेंगे आपको। तो उसको हम थर्ड पे रख लेते हैं। आप बेहतर हो गई है जी ये? जी जी सर। चलो, वेरी गुड। I need one more volunteer to read the scenario number 3, please. Dr. Kashif, are you in the class? Kindly read this scenario, please. Sir, a 5-year-old boy present to you with cough and breathing difficulty. On examination, there is bilateral reduced chest expansion and bilateral wheeze is audible with the centrally placed trachea. The percussion note is resonant. शाबाश, थोड़ा सोचें क्या हो सकता है। बेशक चंद सेकंड ले लिया करें सोचने के लिए, कोई जल्दी नहीं होती। Sir, it seems to be asthmatic. There is bilateral reduced chest expansion and bilateral wheeze is audible with centrally placed trachea. The percussion note is resonant. वेरी गुड, Asthma. वेरी गुड डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर काशिफ ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया कि ये सर एस्थमा का केस है। ठीक है, और डॉक्टर काशिफ अगर एस्थमा फर्स्ट डिफरेंशियल बनाएंगे तो बाकी दो डिफरेंशियल्स क्या बनाएंगे? सर, सर इसमें जो ब्रोंकियोलाइटिस है वो भी हम इसमें बना सकते हैं एस्मा के साथ? नहीं 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 नहीं, इसलिए नहीं बना सकते कि ब्रोंकोलाइटिस 5 साल के बच्चे में नहीं होगा। ब्रोंकोलाइटिस होता है 6 5 माह साल 7 माह के बच्चे में। ठीक है, तो एज बड़ी है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है कि उसकी चेस्ट एक्सपेंशन रिड्यूस्ड है। देयर इज रिड्यूस्ड reduced है, जी चेस्ट सर। एक्सपेंशन। तो चेस्ट एक्सपेंशन रिड्यूस में फिर आप एम्फाइजीमा सोचें और पल्मोनरी फाइब्रोसिस सोचें, क्योंकि एम्फाइजीमा में और पल्मोनरी फाइब्रोसिस में चेस्ट एक्सपेंशन कम हो जाती है। सेकेंडली, वीज उसमें भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि एम्फाइजीमा भी बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। ठीक है, Yes. तो एम्फाइजीमा में उसकी चेस्ट एक्सपेंशन का कम होना भी जस्टिफाई होता है, उसका वीज होना भी जस्टिफाई होता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में वीज इतनी जस्टिफाई नहीं होती, लेकिन उसमें चेस्ट एक्सपेंशन कम होना बहुत ज्यादा जस्टिफाई होती है। सो ओवरऑल 3 खूबसूरत डिफरेंशियल्स आपके यही होंगे कि माय फर्स्ट इज एस्थमा, माय सेकंड इज एम्फाइजीमा एंड माय थर्ड इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस। वेल डन डॉक्टर काशिफ, जबरदस्त। Thank you, sir. चल, सो ये थे सिनेरियोज चेस्ट के। अब अगर आप गौर करें, मैं आज की क्लास को अगर समराइज करूं, चेस्ट की क्लास को, तो जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि चेस्ट में जो ट्रिकी चीजें हैं वो ये हैं कि एक तो आपको स्कीम आनी चाहिए,
जब आपके माइंड में स्कीम होगी तो आपका उस वक्त आप झुंझलाएंगे नहीं, सर नहीं खुजाएंगे, सोचेंगे नहीं। देखें इन क्लासेस का मकसद क्या है? पिछले कई सालों में पढ़ा के मैंने ये चीज सीखी है कि बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब ये वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की थी तो उस वक्त मैं सीनियर रजिस्ट्रार था। नाउ आई एम अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर। वीडियो में अभी भी वो सीनियर रजिस्ट्रार ही बोलते हैं क्योंकि वो पुरानी लगी हुई है। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि ये पिछले चंद सालों में मैंने ये देखा है कि जब स्टूडेंट्स को स्कीम याद नहीं होती ना तो स्टूडेंट परेशान हो जाता है। वो एक स्टेप करता है, उसके बाद वो सोचने लगता है कि मेरा अगला स्टेप क्या है। वो उस सोचने में चंद सेकंड का तवक्कुफ करता है, वक्फा करता है, बाजुकात खुजली करता है, बाजुकात सोचता है, बाजुकात एग्जामिनर की तरफ देखता है, बाजुकात घड़ी की तरफ देखता है। तो 5 मिनट का टाइम है, एग्जामिनर को फौरन पता लग जाता है कि अभी स्टूडेंट कच्चा है। वैसे तो सीपीएसपी ने एक की दी होती है कि इस की के मुताबिक आप मार्किंग करें, लेकिन जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन शफाफ नहीं होते, इसी तरह हमारे यहाँ एग्जाम्स भी शफाफ नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जामिनर्स इम्प्रेशन बना लेते हैं कि स्टूडेंट कच्चा है या पक्का है, इम्प्रेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि गो के की में दी हुई है कि यार इस की के मुताबिक मार्किंग करें, लेकिन उनका इंप्रेशन ही बन जाता है कि ये नहीं स्टूडेंट अभी कच्चा है। आप कोई ऐसी काम कर लेते हैं कि वो आप उनको लगता है कि नहीं अभी कच्चा है, इसकी अभी तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो स्कीम नहीं याद इसको, ये स्टेप्स परफॉर्म सही नहीं कर रहा। तो आपने मेरी इन क्लासेस के एट द एंड ऑफ दीज क्लासेस मैं आपको इस काबिल करना चाह रहा हूँ कि आप इतने पक्के हो जाएं, इतने मेच्योर हो जाएं कि आप कहीं एग्जामिनर को इंप्रेशन ना दे कि मैं अभी कच्चा हूं। चाहे वो स्कीम की बात है, चाहे वो वाइवा क्वेश्चंस की बात है, चाहे वो डिफरेंशियल्स की बात है। डिफरेंशियल्स में देखे ना 5 मिनट का केस, शॉर्ट केस है, उसमें आपने ये सारे स्टेप्स भी करने हैं, अपने आप को कंसोलिडेट भी करना है, पहले से अपनी 3 डिफरेंशियल्स बना के जैसे ही घंटी बजेगी आपने तो शुरू हो जाना बोलना। अब घंटी के बाद तो आपको टाइम नहीं मिलेगा अपने आप को कंसोलिडेट करने का या डिफरेंशियल सोचने का। सो दैट मीन्स कि यू नीड टू बी वेरी 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 परफेक्ट, और वो आप हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं। ये जो क्लिनिकल पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, थ्योरी आपकी पास होती है किताब पढ़ के। ये जो क्लिनिकल पोर्शन है ना, ये पास होता है टिप्स एंड ट्रिक्स सीख के, टेक्निक्स सीख के, स्कीम्स याद करके, डिफरेंशियल याद करके। कौन सा फाइंडिंग आएगी तो मैंने पहले क्या बोलना है, कौन सी चीज आई तो मैंने दूसरे नंबर पे ये बोलना है, इसको मैंने ऊपर रखना है, इसको मैंने नीचे रखना है। ये अगर आप सीख लेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे compete करने के लिए। ठीक है, अब जो मेरी क्लासेस हैं, आज आपकी दूसरी क्लास थी, आपने देखा है कि अगर ये क्लासेस आप ले लें तो पीछे सिर्फ एक चीज रह जाती है, और वही है कि आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली करें। रात को क्लास रखने का मकसद ये होता है कि दिन में आप वार्ड में जाके अपना हैंड्स ऑन कर लें, तो साथ साथ आपका हैंड्स ऑन भी हो जाए, साथ साथ आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन भी। थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ द क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी ठीक ठाक है, और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये किसी एक जगह पे हर बात हर चीज नहीं लिखी हुई। जैसे मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन में सारी चीजें करवा देता हूँ ना, ये इस तरह से मतलब हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बुक्स तो हैं, लेकिन टिपिकल हमारे यहाँ एग्जामिनर्स क्या पूछते हैं, क्या माइंडसेट रखते हैं स्टूडेंट्स, क्या गलतियां करते हैं, आपने क्या नहीं करनी, और किस तरह मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ, ये खाली किताब पढ़ के नहीं हो पाता। सो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग आप लोग हैं, आप रेगुलर ये क्लासेस लें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अब बिफोर एंडिंग दिस सेशन एक दफा डॉक्टर काशिफ आप ही ये सारे स्टेप्स एक दफा रिपीट करें ताकि ये मजीद पक्के हो जाए। आपके सामने नजर आ रहे हैं स्टेप्स। सर, इसमें first of all we will introduce ourselves and take the consent and greeting assalamu alaikum, and then first sir, we will inspect the patient for 20 or 30 seconds, uh, and then we will count the respiratory rate, and then palpate the trachea and apex beat. Then I will I will yeah, I will do the chest expansion
and movements and vocal parameters. Then I will do the vocal resonance and sorry. First of all, I will complete the step 7 percussion and vocal resonance and auscultation. Then I will do the general physical examination, the clubbing, BCG scar, and pallor lymph node, and throat and nose examination. Then I will do the height and weight measurements, and then I will cover and thanks the patient. Well done. सर एक मैं चीज पूछना चाहता हूँ कि जो रेस्पिरेटरी का होता है आप उसमें काफी ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता अगर हम उसका रेस्पिरेटरी रेट काउंट करना शुरू कर दें और सर जो चेस्ट होती है तो इसका तो टाइम पूरा ही नहीं होता अगर हम फ्रंट करें या बैक करें इसमें आप हम 15 काफी सेकंड ज्यादा में कंफ्यूज हो रेस्पिरेशन जाते करना। हैं। आप पूरा 1 मिनट ना सर्व करें, 15 सेकंड में रेस्पिरेटरी रेट काउंट करें, 4 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है सर, इसकी जो होती है ये जो चेस्ट एक्सपेंशन है जो मेजरिंग टेप से ये करनी है, जस्ट चेस्ट मूवमेंट्स ही कर लें, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट और वोकल पैरामीटर्स ये सर 3 हम रूटीन में नहीं करते, इसके बारे में सर बता दें। देखें एक बात याद रखें, एग्जाम में अगर कुछ चीज कर लेते हैं तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, एग्जामिनर को मौका नहीं मिलेगा यार तुमने ये नहीं किया, ना करके खामखा कोई पुराना एग्जामिनर कीड़ा ही निकाले यार आपने नहीं किया। देखिए अब वोकल फ्रैमेटस का कुछ बुक्स में लिखा है कि अब ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन हमारे पुराने एग्जामिनर्स जो 40-50 साल से इम्तहान ले रहे हैं वो अभी भी आपको वहां पॉइंट आउट कर सकते हैं यार आपने फ्रैमेटस नहीं किया। सो आप अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करें, फिर अगर 1-2 चीजें रह भी जाती हैं, कौन सा 100% करेंगे आप, तो फिर खैर है, लेकिन मैं पहले ही आपको 70% की तैयारी कराऊं तो आप तो 50% करेंगे, मैं 100% की तैयारी कराऊंगा तो 70% करेंगे। ठीक है चले शाबाश। अच्छा अब थोड़ा सा जो एक ट्रिक और होती है वो होती है नरेट करने की। बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखे स्टूडेंट को नरेट नहीं करना आ रहा होता, उसकी जुबान लड़खड़ा रही होती है, उसकी जुबान उसके दिमाग का साथ नहीं दे रही होती। थोड़ी सी हम इन क्लासेस में नरेट करने की प्रैक्टिस करेंगे। डॉक्टर भावना कुमारी नाम है आपका, क्या आप प्रोनाउंस करती हैं अपने नाम को? जी जी, डॉक्टर भावना कुमारी। डॉक्टर भावना अब आपने ये करना है, इस स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं, खाली स्टेप्स रीड नहीं करने, आपने एज्यूम करें कि आपने एक शॉर्ट केस कर लिया है, आप मुझे तमाम फाइंडिंग इस तरह नरेट करके सुनाएं कि आपका फाइनल डायग्नोसिस प्लूरल इफ्यूजन बने। यानी इस तरह से करें, आई हैव एग्जामिन्ड अ 4-year-old बॉय, ठीक है, इस तरह आप एक अपना पूरा केस मुझे नरेट करके सुनाएं और आखिर में अपनी फाइंडिंग्स को इस तरह से आपने मुझे सुनानी है कि इफ्यूजन आपका डायग्नोसिस बने। जी डॉक्टर कुमारी। ठीक है, thank you sir for give me a chance. I have examined a 4-year-old patient who is conscious, cooperative during my examination, having no signs of this respiratory distress or dysmorphism. On chest examination, the chest is slightly bulgy on the left side, and there is no tenderness on the chest. The apex beat is located in the 5th intercostal space in the mid-clavicle line. Trachea is deviated on the left side. My findings, percussion note is stony dull. नहीं एक My सेकंड सर, findings. पहले Sorry. वोकल फ्रैमेटस और वोकल रेजोनेंस बता के फिर परकशन नोट का बताएं। Okay, sir. I wanted to tell that my findings are confined on that side. So in the form of increase vocal resonance. On that side, nahi. My findings are confined to the left side of the chest with a decreased vocal frametus and decreased vocal resonance with a stony dull percussion note. ठीक है, इस तरह repeat करें। Okay. I have examined a 4-year-old patient who is conscious, cooperative during my examination, having no signs of respiratory distress or dysmorphism. On chest examination, my patient has a bulge on the left side of the chest. Apex beat is located in the 5th intercostal space in the mid-clavicular line, with trachea is deviated on the left side. My findings are confined to the left side of the chest in the form of decreased vocal resonance and decreased vocal fermitus with its stony dull percussion note and decreased breathe sounds on the left side of the chest. On further extension of my examination, my patient has no signs of anemia, jaundice, clubbing, lymph nodes,
chylonychia, leukonochia, and BCG scar is present or absent, whatever. शाबाश शाबाश, ठीक जा रही हैं, आगे चलें। There is no edema, and serious examination is also normal. Any other things? ठीक है। So And my first differential is this is a case of pleural effusion। ठीक हो गया जी? जी, okay. वेल डन। अब देखें, अब डॉक्टर कुमारी शी इज अ गुड स्टूडेंट, माशाल्लाह वॉलंटियर भी करती हैं, लेकिन फिर भी देखें कितना इनको मुश्किल पेश आई नरेट करते हुए। ये जो नरेशन है ना, ये जितना आपको मैं इन क्लासेस के दौरान प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स ये नरेशन आपकी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और आप एग्जामिनर ये इंप्रेशन लेता है कि ये स्टूडेंट कच्चा नहीं है, इसने प्रैक्टिस की हुई है, इसने मेथड्स किए हुए हैं, इससे बोलना आता है, इससे अपने आप को कंपोज करके अपने फाइंडिंग्स को कंसोलिडेट करना आता है। जितना आप एग्जाम में हब्बड़ दब्बड़ होंगे, ऊपर नीचे होंगे, इधर की इधर उधर की उधर लगाएंगे, अपने आप को कंपोज नहीं रख पाएंगे, खूबसूरती से नरेट नहीं कर पाएंगे, तो भले आपने मेथड अच्छा भी किया है, लेकिन इंप्रेशन ये आएगा कि नहीं अभी कच्चा है, 6 माह बाद दोबारा बुलाओ। तो आपने तमाम ऐसे स्टेप्स करने हैं कि आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करें, इंप्रेशन अच्छा बनाए। अच्छा, ये हमने प्रैक्टिस की है। चेस्ट एग्जामिनेशन को मैंने आपसे नरेट करवाया। अभी गिव मी 1 सेकंड, मैं जरा प्रिकॉर्डियम के भी दोबारा लगाऊं। मैं पहले आपको मैं नरेट करना सिखाऊंगा प्रिकॉर्डियम को, फिर पहले मैं एक दफा नरेट करूंगा आपके सामने, फिर आप में से एक वॉलंटियर प्रिकॉर्डियम को भी नरेट करके सुनाएगा। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट में ये अपनी प्रेजेंटेशन आपके सामने लगा दूं। ये मैंने स्टेप्स लगा रहा हूँ, ये स्टेप्स आपके सामने खुल गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं नरेट करके आपको सुनाऊंगा। I have examined a 5-year-old boy who is lying comfortably on bed with no obvious dysmorphic feature or respiratory distress. The apex beat is in the 4th intercostal space, normal in character. There is no parasternal heave or thrill present. The trachea is central and there are no epigastric pulsation. On auscultation, both the first and second heart sound are audible with a grade 3 pan-systolic murmur, maximum heard at left lower sternal border, radiating to the whole of the precordium, with no exaggeration on respiration or change of posture. The child is not in heart failure and there are no signs of infective endocarditis. On further extension of my examination, the child is pale, is clubbed, but not jaundiced, and there is pedal edema present. There is bilateral pedal edema present, which is extending up to the legs, along with scrotal and sacral edema. ठीक है, ये मैंने आपको नरेट करके सुना। अच्छा, नरेशन में हमेशा कोशिश ये करनी है कि पॉजिटिव फाइंडिंग्स पहले बताएं, नेगेटिव फाइंडिंग्स बाद में बताएं। और नरेशन में हमेशा टू द पॉइंट नरेट करना है, बहुत बहुत पॉजेज, बहुत इररेलेवेंट चीजें नहीं बतानी। क्योंकि देखें, 5 मिनट आपको परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं, अगले 5 मिनट बाद पहली बेल बजती है, अगले 5 मिनट में आपने नरेट भी करना है और उसी 5 मिनट में आपने वाइवा भी देना है। ठीक है, क्योंकि उसके फिर 5 मिनट बाद फिर अगली तीसरी बेल बज जाती, मतलब एक और बेल बज जाती है। तो अगर आप अपना टाइम बचाएंगे तो आप एग्जामिनर का टाइम भी बचाएंगे और वाइवा के लिए ज्यादा स्पेस क्रिएट करेंगे और एग्जामिनर इरिटेट नहीं होगा आपसे। अब मैंने जो आपको प्रिकॉर्डियम का नरेट सुनाया है, उसमें अभी भी थोड़ा बहुत मैंने पॉज लिया है। मैंने तो इम्तिहान नहीं देना, मैंने तो 2018 में दे दिया था, आप लोगों ने देना है। आपने ये थोड़ा बहुत पॉज भी नहीं लेना, आपने अपनी रवानी और भी बेहतर तरीके से करनी है। ठीक है, अब हम एक वॉलंटियर से
रिपीट कराएंगे रिकॉर्डियम की नरेशन। फाइंडिंग्स में आपको बता देता हूँ जिनको आपने पॉजिटिव करना है। स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। टॉप वाली फाइंडिंग्स इमेजिन करें कि अपने पेशेंट को साइनोस बताना है, क्लब बताना है, टॉफ का मरमर बताना है, और टॉफ को माइंड में रखते हुए अपना केस नरेट करके सुनाए मुझे। जी, कौन वॉलंटियर करेगा? मेरी क्लास में जो वॉलंटियर करता है वो कभी फेल नहीं होता। ये मेरे पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर काशिफ ट्राई करेंगे? जी सर, मैं करता हूँ। कर ले, शाबाश, कोई बात। सर सर इसमें जो टॉप है उसकी फाइंडिंग है, ठीक है। Sir, I have examined a 4-year-old boy who is conscious cooperative during my examination with the obvious cyanosis with no sign of respiratory distress. Shape of the chest is normal, and shape of the chest is normal. Apex beat is in the fourth intercostal space, and there is first and second heart sound audible with the ejection systolic murmur at left upper sternal border. Which is of grade 3/6. Sorry sir. शाबाश शाबाश, ठीक कर रहे हैं, कोई सॉरी करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। शाबाश, आपने ग्रेड बता दिया। मैक्सिमम कहाँ हार्ड है ये बता दें, रेडिएट कहाँ कर रहा है। अगर नहीं करा तो कह दें नॉट रेडिएटिंग टू एनीवेयर विद नो एग्जैजरेशन ऑन चेंज ऑफ पोस्चर और रेस्पिरेशन। शाबाश, कम ऑन। Sir, there is pansystolic murmur at left upper sternal border, maximum intensity at left upper sternal border, which is not exaggerated at to any side. Sir, on relevant examination, there is clubbing and cyanosis, and there is no sign of infective endocarditis. सर मैं भी आज मेरा पहला दिन था। जब इनफैक्ट कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, पहले दिन तो ऐसा नहीं बताते लोग। अच्छा, जब भी आप साइंस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को नेगेट करें, साथ ही हार्ट फेलियर को भी नेगेट कर दें अगर वो नहीं है तो, ठीक है। तो बोले द चाइल्ड इज नॉट इन हार्ट फेलियर एंड देयर आर नो साइंस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, बोलें ये बात। सर देयर इज नो हार्ट फेलियर एंड देयर इज नो साइन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। वेल डन, शाबाश शाबाश। तो हो गया आपका, काफी बेहतर हो गया, जिसमें आपने माशाल्लाह क्लबिंग का जिक्र किया, साइनोसिस का जिक्र किया। फेलियर में ये बच्चे नहीं जाते, आपने बिल्कुल ठीक बताया। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में बच्चा नहीं था, और बाकी मरमर की डिस्क्रिप्शन आपने दे दी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये वैसी चीजें जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, सुना रहा होता हूँ, आप सुन रहे होते हैं तो बड़ी आसान लग रही होती, लेकिन जब खुद आप बोलना शुरू करते हैं, जैसे डॉक्टर कुमारी ने बोला, डॉक्टर काशिफ ने बोला, तो माशाल्लाह अच्छा बोला, लेकिन मुश्किल हो रही थी उनको, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और रीजन ये थी कि बहुत ज्यादा आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की हुई इस चीज की। तो ये कमिंग क्लासेस में मैं आप लोगों की इस चीज की इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अच्छा, अब एक चीज जो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा जिसकी जरूरत है करने की, वो ये मरमर की डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि देखें, अगर आपका केस प्रिकॉर्डियम का तो मरमर तो होगा, तो अगर मरमर है तो खाली ये तो नहीं बताएंगे ना कि सर दिस इज इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, डेफिनेटली उसको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो पहले से क्यों ना हम इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस में ये कराता हूं, पहले मैं एक दफा डिस्क्राइब करूंगा, फिर आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। मरमर को डिस्क्राइब करने से पहले आपने ये बताना है कि both the first and second heart sounds are audible with a grade 3 pansystolic murmur, maximum heard at left lower sternal border, radiating to the whole of the precordium with no exaggeration on respiration or change of posture. ये मैंने मरमर की डिस्क्रिप्शन सुनाई है। मैंने आपको बताया था मरमर के 8 कैरेक्टर्स हैं, अगर 8 नहीं सुना सकते कम से कम 6 सुनाने। मैंने भी 6 सुनाए, 2 मैंने मिस किए हैं जान के, एक कैरेक्टर नहीं बताया, एक पिच नहीं बताई, इसलिए कि ताकि आप को इजी करके याद करवाऊं। कि अगर मैंने देखा है कि अगर 6 भी बता दें तो इम्तिहान पास हो जाता है। एग्जामिनर, देखो एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, इतना खूबसूरत बोलें कि एग्जामिनर कहे
डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर कुमारी, मैं आपको चाह के भी फेल नहीं कर सकता, जाएं आप पास हैं। मैं चाह रहा था आपको फेल करूं, लेकिन मैं फेल नहीं कर सकता आपको। ठीक है, ये होगा, ये मुश्किल नहीं है, ये इंशाल्लाह होगा। तो डॉक्टर कुमारी जरा एक दफा मरमर काइंडली डिस्क्राइब कीजिएगा। ये तो मैंने तो पैनसिस्टोलिक मरमर का डिस्क्रिप्शन दिया, आप किसी और मरमर की दे दें बेशक। जैसे मर्जी भी आप रेडिएशन करवाएं, वो जरूरी नहीं है कि हार्ड एंड फिक्स हो। बस आपने एक दफा टेम्पलेट सुना दिया, हमें टेम्पलेट। Okay. Both S1 and S2 are audible normally. There is a grade 4/6 of pansystolic murmur, maximum intensity at the apical area with radiation to the axilla, where there is no change in respiration and posture. वेरी गुड, शाबाश, काफी बेहतर था, काफी बेहतर था। विद यूं बोल रहे, विद नो विद देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन और चेंज इन पोस्चर, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि ये स्टूडेंट पोस्चर और रेस्पिरेशन की जो कमांड दे रहा था वो इसलिए दे रहा था कि देख रहा था कि क्या पोस्चर चेंज करने से मरमर पे कोई फर्क पड़ रहा है या रेस्पिरेशन का मरमर पे कोई फर्क पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको जब मेथड वीडियो दिखाई दी तो उसमें बताया था कि जो हार्ट जो एक्सपिरेटरी मरमर्स होते हैं वो सांस अंदर लेने की कमांड में बढ़ जाते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो सांस बाहर निकालने की कमांड में चेंज हो जाते हैं। सो रेस्पिरेशन की जो कमांड है ये बड़े बच्चों में देनी, ये भी याद रखें, छोटे बच्चों में रेस्पिरेशन की कमांड नहीं देनी। तो वेल डन, आपने मरमर की भी डिस्क्राइब करना आपने सीखा आज, उसकी प्रैक्टिस भी की। तो ये अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वॉलंटियर जरूर करें। जितना आप वॉलंटियर करेंगे उतना आप अच्छा सीखेंगे। तो नहीं करेंगे तो फिर मैं जिस आज मैंने डॉक्टर मरियम से, डॉक्टर फातिमा से, डॉक्टर काशिफ से रिक्वेस्ट की कि आप बोलें, तो उन्होंने बोला। तो डॉक्टर कुरतुलैन ने भी माशाल्लाह बोला। तो कमिंग क्लासेस में आप कोशिश करें कि और ज्यादा पार्टिसिपेट करें और ज्यादा बोलें, बहुत कुछ सीखेंगे। बिलीव मी, मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द होल कोर्स कहते हैं कि सर इस कोर्स में हमने इतना सीखा जितना हमने 4 साल में नहीं सीखा, क्योंकि हम टोटल आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवा रहे हैं। हम कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ाते, फुली फोकस होकर एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ा रहे हैं आपको। सो विद दिस लेट्स फिनिश टुडेज क्लास। रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो जो क्लास होती जाएगी उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आपके पास। अगर फर्ज करें किसी की कोई क्लास मिस हो जाती है तो अभी रात को क्लास हुई है ना, तो कल मॉर्निंग में इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी। जो जितने भी स्टूडेंट्स जो रजिस्टर हुए हैं, फरहीन आर यू हियर? फरहीन फ्रॉम मेड एग्जाम एक्सपर्ट। यस सर। फरहीन, आपने काइंडली स्टूडेंट से इन टच रहना है। फरहीन का नंबर ग्रुप में, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है। फरहीन को हमारी मेड एग्जाम एक्सपर्ट की रिप्रेजेंटेटिव हैं। सेशंस को ऑन करना, ऑफ करना, सेशंस अपलोड करना, लिंक्स भेजना, आपकी टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है, किसी को पासवर्ड का प्रॉब्लम है या यूजर नेम का, या समझ नहीं आ रही है, या रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड नहीं हो रही, या बैकवर्ड नहीं हो रही, कोई भी प्रॉब्लम है, आपने फरहीन से कांटेक्ट करना है। फरहीन इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो फरहीन, जो स्टूडेंट्स इनरोल होते जा रहे हैं काइंडली उनको साथ साथ रिकॉर्डिंग्स की एक्सेस का तरीका भी सारा बताते जाइएगा, ठीक है? यस सर, श्योर। तो चलें, विद दिस लेट्स फिनिश टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। फरहीन, अगर वो वीडियो है जिसमें रिकॉर्डिंग को कैसे देखना है, वेबसाइट पे कैसे लॉग इन करना है, वो अगर वीडियो है तो ग्रुप में भेज दें, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में। यस सर, मैं शेयर कर देती हूँ। चल, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।